अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सबको जा रही है? जी जी। तो ये एसटीवन का हमारा आज से एक नया बैच शुरू हो रहा है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैच फॉर द एसटीवन एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास। टाइम विल बी दी 8 to 10 PM। 8 से 10 रहेगा एंड वीक डेज में रहेगा, मंडे टू थर्सडे रहेगा। मेरा प्रोफाइल आपके सामने है, स्लाइड के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। चंदन कहाँ पे जॉब करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मैं विप्रो में हूँ अभी। किसमें? विप्रो में। अच्छा, विप्रो के अंदर है। सीसीएनपी कर चुके हैं? जी जी, सीसीएनपी कंप्लीटेड। चूँकि और एटलीस्ट सीसीएनपी ज़रूरी है एसटीवन के लिए, और अदरवाइज अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। जी, और 7 years एक्सपीरियंस इन राउटिंग स्विचिंग। ठीक है, गुड। मोहम्मद आज़ाद कौन है? यस सर। क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपका? सर मैंने सीसीएनए किया है हम्म, और आई एम वर्किंग इन आज तक। अच्छा, तो सीसीएनए के बाद तो एसडीवन मुश्किल होगा। बाकी आई एम टेकिंग द प्रॉपर क्लास, क्योंकि आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ द सर स्टूडेंट। एक्चुअली आई वांटेड टू अटेंड सीसीएनपी क्लास बट द बैचेस आर नॉट देयर। नहीं, बैचेस तो मिल जाएंगे, बट बैचेस आपके पास 8 to 10 में वी हैव ऑलरेडी अनाउंस द एसडीवन। तो एसडीवन का बैच फिलहाल हो रहा है। इफ़ यू वांट टू टेक द डेमोस्ट्रेशन यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम, बट आई एम टेकिंग द प्रॉपर क्लास। ओके सर। प्रखर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग्स। कहाँ जॉब करते हैं? सर अभी मैं सिक्योरिटी देख रहा हूँ। अच्छा, सीसीएनपी कर चुके हैं? नहीं सर, सीसीएनए का ही है। मैंने एक्चुअली सीएस वर्जन 11 निकाला है, बट एसडी वैन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आई थिंक इट्स न्यू फॉर मी, सो आई वांट टू चेक डेमो। नो इफ प्रॉब्लम। suited then I will join it. Okay, no problem. The problem is that when we will discuss about the SD-WAN, the lot of the terminology belongs to the CCNP routing and switching. Then that will be the problem for the student who have completed only the CCNA. That is the issue. No problem. You can take the demonstration. No problem. Thank you. Shivam Singh. Are you getting my voice? शिवम, शिवम, मेरी आवाज आ रही है अब तक? शायद आवाज नहीं जा रही है। विजय, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? विजय और शिवम, इंट्रोडक्शन हो सकता है या कोई नाराजगी है? Hi, Anwar. I'm Vijay. I have some 18, 19 years of experience in network security. Okay. So I'm just joined to learn this SD-WAN. Okay, you have completed CCNP? Yeah. Okay, I will take the class not in the English language. It will be the mixing language. If you want to take the class in totally in English language, I can give the separate batch, no problem. You can talk to the Amir sir. Okay, sure. So when will be the batch will be started? You can ask the Amir sir. Okay, thank you. If you want to remain on login, you keep it, no problem. तो जो सिलेबस है CCNP SD-WAN का, that is on the website भी पढ़ा है, और syllabus. And we have designed the two syllabus of the SD-WAN. One is the basic and another is the advanced. And these are the topics. And the total fee of the SD-WAN is 20,000. And the first course fees is 15,000. And the advanced course fee is 5,000. First, we will start from the zero level. That is the basic. You can find out the syllabus on the internet, or you can ask to the Amir sir. That is the basic curriculum, and after that we'll go to the advanced curriculum. And that is the lab of the SD-WAN for the basic SD-WAN, and for the advanced SD-WAN we have the another lab. So before starting the SD-WAN, we will discuss about the previous terminologies so that we can understand the SD-WAN in easiest way.
Now I am going to start the class. Those who are interested, please note down each and every bit. Before SD-WAN, we want to discuss something about the CCNA and CCNP terminologies. There is one term, VPN, Virtual Private Network. Virtual Private Network. There is one book written by Mr. Luke. I think किसी ने पढ़ा हो. मिस्टर लूक ने चाइना की एक किताब लिखा है, फंडामेंटल ऑफ MPLS. Fundamental of MPLS. And Mr. Luke is the best engineer of the world in MPLS. बहुत अच्छी किताब लिखी है MPLS की. And in that book, he described कि VPN के दो मॉडल होते हैं. VPN के दो मॉडल होते हैं. Those who are interested, रिक्वेस्ट है नोट करते रहें. VPN के दो मॉडल होते हैं. One is the peer-to-peer model. Peer-to-peer model. And another is the overlay model. Another is the overlay model. दोनों में डिफरेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू दी मिस्टर लूक, उनका कहना यह है कि इन केस ऑफ द पीयर टू पीयर, ISP is responsible for connectivity. अब वो कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर पर हो, वो कनेक्टिविटी वायरलेस पे हो, वो कनेक्टिविटी कॉपर वायर पे हो, किसी पर भी हो सकती है. दूसरा पार्ट मिस्टर लूक ये कहते हैं कि ISP is also responsible for customers' private NIDs issues. क्या मतलब है, थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं. पीयर टू पीयर का जो एग्जाम्पल है मिस्टर लूक ने दिया है MPLS. MPLS is the example of the peer to peer model. MPLS में पीयर टू पीयर मॉडल चलता है, और दूसरा जो ओवरले मॉडल है उसके बारे में मिस्टर लूक का कहना है कि ISP is only responsible for connectivity. केवल कनेक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो आपके हेडक्वार्टर या ब्रांच होंगे या ब्रांच टू ब्रांच होंगे. ISP will not participate. ISP will not participate in customers' private NIDs issues. वो ये नहीं देखेगा कि प्राइवेट NID एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही हैं कि नहीं जा पा रही हैं. वो आपको केवल एंड टू एंड कनेक्टिविटी देगा. ओवरले के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिन सारी टर्मिनोलॉजी का हम डिस्कशन करेंगे ताकि SD-WAN को समझने में आसानी हो. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है फ्रेम रिले. ये तकरीबन 2009 तक CCI के एग्जामिनेशन में आता था, उसके बाद इसको हटा दिया गया. DMVPN से पहले एक GRE होती थी. GRE के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये भी ओवरले मॉडल है. एंड DMVPN भी ओवरले मॉडल है. और जो हम SD-WAN पढ़ेंगे ये भी ओवरले मॉडल है. इसलिए हमें इन सारी टर्मिनोलॉजीज का जो पीछे पढ़ चुके हैं CCNA NP में, उसका एक रिफ्रेश चाहिए है. रिफ्रेशमेंट हमें चाहिए. अगर हम वो नहीं करेंगे रिफ्रेश टर्मिनोलॉजी, तो SD-WAN को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी.
सबसे पहले डिस्कशन करेंगे 2009 में जो फ्रेमले ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर हम देखेंगे जीआरई में क्या था, डीएमवीपीएन में क्या था, और उसी से फिर एमपीएलएस देखेंगे, फिर एसडीवैन की तरफ मूव करेंगे। तो फ्रेम रिले में फ्रेमले क्लाउड होता था, और फ्रेमले क्लाउड से एक डिवाइस कनेक्ट हो गई जिसको हम हेडक्वार्टर बोलते थे, दूसरा साइट ये ब्रांच हो गई, ये फिर ब्रांच हो गई, और ये मल्टीपल ब्रांच हो सकते थे। यहाँ पर जो लैन है वो प्राइवेट एनआईडीज पर होता था। ये प्राइवेट एनआईडी 1, प्राइवेट एनआईडी 2, प्राइवेट एनआईडी 3, यानी कुछ भी नेटवर्क आईडी हो सकती है प्राइवेट, जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जो आरएफसी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट 1980 के अंदर डिस्क्राइब्ड है। यहां पर जो लिंक होता था वो नॉन आईपी होता था। इन केस ऑफ द फ्रेमले ये नॉन आईपी होता था। यहां पर आईपी एड्रेस नहीं होते थे। हेडक्वार्टर और ब्रांच पर हम अपने ही आईपी एड्रेस डाला करते थे। लेट्स से 1.1 प्राइवेट आईपी एड्रेस है, .2.3.4, और यहाँ पे हमारी प्राइवेट एनआईडीज आ गई। लेट्स से 1.0, यहाँ पे 10.10.2.0, यहाँ पे 10.10.3.0, और यहाँ पे 10.10.4.0। तो पर्पस ये था यहाँ पर कि प्राइवेट एनआईडीज को एक लोकेशन से दूसरी जगह लेकर जाएं, बट सेपरेट तौर पे वो किसी से मिक्स ना करें। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता था डीएलसीआई, किसी को अगर याद हो, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। ये 10 बिट्स का हुआ करता था। तो डीएलसीआई प्रोवाइड करता था आपको कनेक्शन। तो हम कनेक्शन फुल मैश भी बना सकते थे, पार्शियल मैश भी बना सकते थे। तो हमारी जो ये प्राइवेट एनआईडीज थी, ये इस क्लाउड पे आईएसपी के किसी भी राउटर पे नहीं जाती थी, क्योंकि ये तो था ही नॉन आईपी। तो ये एल जो फ्रेमले था, ये L2 VPN होता था। और मिस्टर लूट ने ये लिखा है अपनी किताब में कि जो लीज लाइन होती थी, ये L1 VPN होता था। और ये उन्होंने ये भी लिखा है अपनी किताब में, फंडामेंटल ऑफ एमपीएलएस, जो किताब मैंने बताई पीछे स्लाइड पे, ये वर्ल्ड फर्स्ट वीपीएन था जो लीज लाइन के ऊपर हम लेते थे। और लीज लाइन डेडिकेटेड लिंक होता था, बट दैट वाज टू मच कॉस्टली होता था। तो फ्रेमले के अंदर नॉन आईपी लिंक होता था। जैसे किसी ने एमपीएलएस अगर पढ़ रखा हो, तो एमपीएलएस में हम एटॉम पढ़ते हैं, एनी ट्रांसपोर्ट ओवर एमपीएलएस। यहाँ पर भी हम नॉन आईपी लिंक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी हम नॉन आईपी लिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेस हम ले रहे थे। कॉस्टिंग जो जाती थी केवल TCI की करती थी। जीआरई के केस में जो जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन था, SD1 पे जीआरई भी अप्लाई होता है और SD1 पर IPsec भी अप्लाई होता है, बट बाय डिफॉल्ट IPsec इनेबल्ड होता है। जीआरई के केस में जो क्लाउड होता था, इंटरनेट क्लाउड, यहाँ से ISP का जो P राउटर है उससे C राउटर कनेक्टेड होते थे। ये इसलिए बताना जरूरी है, सारी टर्मिनोलॉजी SD1 में आपको काम आएंगी। यहाँ पर अगर कोई नेटवर्क प्राइवेट एनआईडी 1.0 है, यहाँ पर कोई नेटवर्क आईडी 10.10.2.0 है। इन केस ऑफ द जीआरई वाज दी अगेन ओवरले मॉडल। ओवरले मॉडल के अंदर केवल कनेक्टिविटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो वर्चुअल हो या फिजिकल हो। जैसे यहाँ पे डीएलसीआई के थ्रू कनेक्टिविटी की गई। इन केस ऑफ द जीआरई, यहाँ पर और यहाँ पर हमें पब्लिक स्टैटिक आईपी चाहिए। ये जीआरई का ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जितने ब्रांच और हेडक्वार्टर आप ओपन करेंगे सब पर पब्लिक स्टैटिक चाहिए, और स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉस्टली होता है। तो ये अगर ऑफिस आपके पास लेट से इंडिया में है और ये आपके पास ऑफिस यूके में है,
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ISP अलग होगा, कोई ISP1 होगा, ये ISP2 होगा, दोनों ISP समहाउ BGP के थ्रू कनेक्टेड होंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है वो ISP की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पब्लिक IP को पब्लिक IP से कम्युनिकेट कराए। बट ओवरले मॉडल ये कहता है कि प्राइवेट NID, यहाँ ये वाली NID यहाँ पे जाएगी नहीं जाएगी, ये हमारा हेडेक नहीं है, ये आप खुद बनाएंगे। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है, जो C है, कस्टमर है, वो क्या करता था कि एक टनल बनाता था जिसको हम GRE के नाम से जानते थे, जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। और जो हम बनाते थे, ये आपके पास ये नेटवर्क आईडी यहाँ से निकल कर ऐसे पहुंच जाया करती थी, और ये नेटवर्क आईडी ऐसे करके ऐसे आ जाया करती थी। हमारी ये वाली नेटवर्क आईडी और ये नेटवर्क आईडी ISP के ना तो इस राउटर पर मौजूद होती थी ना इस पर, क्योंकि ओवरले मॉडल के अंदर हम अपनी नेटवर्क को ISP को नहीं दे रहे, हम अपनी नेटवर्क, ISP विल नॉट पार्टिसिपेट इन कस्टमर नेटवर्क आईडी, अपनी नेटवर्क आईडी को एक लोकेशन से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं। तो याद रहे, ना तो फ्रेमलेस सिक्योर था, ये भी अनसिक्योर था, और जो GRE है ये भी अनसिक्योर थी। GRE के अंदर ड्रॉबैक्स हुई, उसके बाद बनाया गया DMVPN। इससे काफी मिलता जुलता है हमारा SD-WAN, डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN। इसके अंदर दो नए प्रोटोकॉल्स का कॉन्सेप्ट आया। एक होता था MGRE यानी मल्टी पॉइंट GRE, चूंकि GRE पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता था, ये मैनी पॉइंट टू पॉइंट बना देता है। एंड सेकंड इज NHRP, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि ड्रॉबैक ऑफ द स्टैटिक GRE वाज कि वो कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा था विद रेस्पेक्ट टू दी जितने भी ब्रांच आप ओपन करते हैं। दूसरा ये कि जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट था, जितने भी ब्रांच आप ऑन करेंगे, अटैच करेंगे ब्रांच से, हेडक्वार्टर से, तो व्हाट विल हैपन कि जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो लोड है वो एडमिन के ऊपर भी पड़ेगा आपके पास, क्योंकि वो और हेडक्वार्टर पे क्या राउटर जो होगा उसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी होगा, क्योंकि एवरी टाइम आपने कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हर एक ब्रांच के लिए वहाँ पे कुछ। DMVPN ही कहता है कि ये दोनों चीजें हम मिनिमाइज कर देंगे, कॉस्ट भी कटिंग कर देंगे, और जो एडमिन का जो वर्कलोड है और जो CPU यूटिलाइजेशन राउटर का हेडक्वार्टर पर, उसके भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम कर देंगे। इस केस में जो हेडक्वार्टर है उसको NHRP सर्वर के नाम से जाना जाता है या NHS के नाम से, और ये कनेक्टेड होगा क्लाउड से। और यहाँ पर ये ब्रांचेस होंगे, ब्रांच 1 ये इसका LAN हो गया, ब्रांच 2 ये इसका LAN हो गया, ब्रांच 3 ये इसका LAN हो गया। केवल हेडक्वार्टर के इस इंटरफेस के ऊपर पब्लिक स्टैटिक IP होगा। In case of the DMVPN, public static IP address is required on the headquarter या NHS के ऊपर। लेकिन जो ब्रांचेस हैं जिनको NHRP क्लाइंट कहा जाएगा, उनके ऊपर जो IP एड्रेस होगा वो पब्लिक तो होगा लेकिन डायनेमिक होगा, पब्लिक डायनेमिक IP होगा। इसका मतलब ये हुआ कि whenever दिस लिंक गोज डाउन और अप होकर आएगा, इसका IP एड्रेस बदल जाएगा, यानी ये सारे के सारे DHCP क्लाइंट्स पर होंगे प्रैक्टिकल सिनारियो में, और यहाँ जो भी राउटर्स लगे होंगे वो DHCP सर्वर की तरह एक्ट करेंगे। जो प्राइवेट NIDs एग्जिस्ट करेंगी वो प्राइवेट NIDs यहाँ पर होंगी, वो प्राइवेट NID1 यहाँ पर होगी, प्राइवेट NID2 यहाँ पर होगी, ये प्राइवेट NID3 एंड
प्राइवेट जो NID होगी 4 होगी। इन केस ऑफ द GRE जो हम टनल बनाते थे, वो यहाँ पर हम टनल बनाते थे, लेट्स से टनल 0 एंड टनल का IP एड्रेस, देन टनल का सोर्स, देन टनल का डेस्टिनेशन। यहाँ से टनल का सोर्स ये होता था, ये डेस्टिनेशन था, और ये इस वाले डिवाइस पर ये सोर्स था और ये डेस्टिनेशन था। बट इन केस ऑफ द DMVPN क्या होगा? DMVPN में यहाँ पर एक टनल होगी, यहाँ पर भी टनल होगी, यहाँ पर भी टनल होगी, और यहाँ पर भी टनल होगी। तो इस टनल का अगर IP एड्रेस 10 प्राइवेट 10.1.1 है, इसका IP एड्रेस 2 है, इसका IP एड्रेस 10.1.1.3 है, और इसका IP एड्रेस 10.1.1.4 है। तो टनल का IP एड्रेस तो आ गया, बट टनल का सोर्स क्या होगा? इसका टनल का सोर्स हम ये ले सकते हैं, या वॉट अगर ये प्राइवेट पब्लिक IP एड्रेस दिस वन ये ले सकते हैं। तो टनल का IP हो गया, टनल का सोर्स हो गया, बट टनल का डेस्टिनेशन क्या होगा? क्योंकि टनल का डेस्टिनेशन तो टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है। चूंकि लिंक डाउन होने के बाद अप होगा तो IP एड्रेस विल चेंज। तो फिर क्या किया जाए? जबकि इन केस ऑफ द ब्रांच अगर हम देखते हैं तो वो टनल का जो सोर्स IP एड्रेस है, वो इंस्टीड ऑफ टेकिंग द सोर्स IP एड्रेस, वो अपना gig0 इंटरफेस ले सकता है। टनल का IP एड्रेस, टनल का सोर्स में टनल का gig0 हो गया, एंड टनल के डेस्टिनेशन में बिकॉज ये IP एड्रेस फिक्स है, तो इसके पास तो सारे पैरामीटर्स मौजूद हैं ब्रांच के पास। टनल का IP एड्रेस, टनल का सोर्स, टनल का डेस्टिनेशन। बट हेडक्वार्टर के पास टनल का IP एड्रेस है, टनल का सोर्स है, टनल का डेस्टिनेशन नहीं पता है। तो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा गया NHRP का। तो जितने भी ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांच को हम ये डिफाइन करते हैं कि आपका जो NHRP सर्वर है वो कौन है, और NHRP सर्वर कौन है? ये हमारा जो हेडक्वार्टर है, ये NHRP सर्वर है। तो यहाँ पर ये डिवाइसेस जब हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो जब कभी भी लिंक डाउन होने के बाद अप आता है एवरी टाइम, यानी जब कभी भी डिवाइस नई आप लगाएंगे, यानी व्हेन यू विल कॉन्फ़िगर द न्यू डिवाइस फॉर द DMVPN, और लिंक डाउन होने के बाद आप आएगा, बात बराबर है। एवरी टाइम दैट डिवाइस विल सेंड द NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, जिसमें डिवाइस ये बताएगी माय करंट पब्लिक IP एड्रेस इज दिस वन एंड माय टनल IP एड्रेस इज दिस वन। जब ये इंफॉर्मेशन आएगी तो ये उसको यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, यानी उसको रजिस्टर्ड कर लेगा, NHRP रिप्लाई। यहाँ पर ये इसलिए बताया जा रहा है, ये कुछ सिमिलर है इन केस ऑफ दी SD-WAN। SD-WAN का अगर हम यहाँ पे डायग्राम दिखाते हैं तो यहाँ पर एक टर्म है vBond। ये क्या करेगा थोड़ी देर में देखेंगे, अभी 10-15 मिनट के बाद आएंगे। जब कभी भी कोई न्यू डिवाइस, ये SD-WAN एज डिवाइसेस हैं, ये SD-WAN की जो एज डिवाइस हैं वो हैं, जो दो तरह की होती हैं, VEdge वेबटेला की और C-Edge सिस्को की। तो जब कभी भी कोई नई डिवाइस अप होकर आती है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं या डाउन होने के बाद अप होकर आती है, इसके पास केवल इस डिवाइस की ही इंफॉर्मेशन होती है। ये एक कंट्रोलर्स है, क्या करता है कंट्रोलर थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। तो जिस तरीके से ये यहाँ पर आने वाली नई इंफॉर्मेशन, जो भी डिवाइस अप होकर आती है, सबसे पहले vBond के पास जाते हैं, और vBond ही इस बाकी जितनी भी डिवाइस के अंदर और कंट्रोलर हैं उनका इंट्रोडक्शन कराता है। सिमिलरली इन केस ऑफ द यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इन केस ऑफ द DMVPN में जब कभी भी कोई ब्रांच कनेक्ट होता है तो वो हेडक्वार्टर को एक रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजता है, जिसके बिहाफ पर एक ये स्टैटिक टनल बनाता है, और इसकी जो टनल्स होती हैं सारी डायनेमिक होती हैं। इनके टाइम्स जो होते हैं वो 2 आवर्स के होते हैं, यानी 2 आवर्स तक वो टनल रहती है। तो इसमें ये जो नेटवर्क है, इतना जो पार्ट है जितना मैंने अभी डॉटेड किया है, ये कहलाता है अंडर ले नेटवर्क, ये कहलाता है अंडर ले नेटवर्क। और जो प्राइवेट NIDs हैं यहाँ पर,
ये कहलाती हैं ओवरले नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क, ये भी ओवरले नेटवर्क है और ये सारी ओवरले नेटवर्क है। सिमिलरली यहां पर अगर हम देखेंगे SD-WAN में, तो ये ये और ये ओवरले नेटवर्क है। और यानी जितना भी है ये सारा का सारा अंडरले नेटवर्क है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी सिमिलर हैं, इसलिए पुरानी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान है। जिन लोगों ने पढ़ रखी है उनको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि CCNP के बाद अगर ये किया जाए तो फिर समझने में आसानी होती है। तो यहाँ पर जो DMVPN था ये भी अनसिक्योर है। DMVPN भी अनसिक्योर है। हर एक का एक ही पर्पस हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो सारे लोग, मेन पर्पस है कि प्राइवेट NIDs को यहाँ जो टनल्स फॉर्म्ड की जाएंगी, उन टनल्स के थ्रू इस प्राइवेट NID को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया जाए। यही पर्पस DMVPN का भी है, यही पर्पस GRE का भी था, यही पर्पस पुरानी टेक्नोलॉजी 2009 में जो ख़त्म कर दी सिस्को ने, यही टर्मिनोलॉजी वहाँ पर, यही फंक्शन उसका भी था। और जो MPLS है, MPLS का भी फंक्शन यही है। MPLS जो आता है वो पीयर टू पीयर में आता है। इसके बाद फिर SD-WAN के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो MPLS के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो MPLS क्लाउड आ जाता है। और यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं वो PE और C ना कहकर, यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं वो एज LSR के नाम से जानी जाती हैं। जनरली हम उसको PE बोल देते हैं, जो कि आम लैंग्वेज बन चुकी है। और बीच के जो राउटर हैं वो हम P बोल देते हैं, बट ये सारे के सारे लेवल स्विच राउटर होते हैं। यहाँ पे ये क्लाइंट का राउटर C होगा, यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स यहाँ से जुड़े होंगे जिनके पास प्राइवेट NIDs एग्जिस्ट करेंगी। ये प्राइवेट NID आपके पास 1 हो गई, प्राइवेट NID 2 हो गई, प्राइवेट NID 3 हो गई, प्राइवेट NID 4 हो गई। इन केस ऑफ द MPLS में हम अपनी प्राइवेट NID डायरेक्टली नहीं भेजते, जैसे कि हमने फ्रेमले में भेजी, जैसे कि DMVPN में भेजी, जैसे कि GRE में भेजे। इन केस ऑफ द MPLS में यहाँ पे VRF बनाई जाती हैं, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। यहाँ पे VRF बनाई जाती हैं, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। और कस्टमर की जितनी भी नेटवर्क्स होती हैं वो नेटवर्क यहाँ से VRF में चली जाती हैं। ये नेटवर्क यहाँ चली जाती है, ये नेटवर्क यहाँ चली जाती है। और यहाँ पर हम BGP का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यहाँ पर BGP का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और यहाँ पर BGP पेयरिंग बनाई जाती है और यहाँ पर एक VPN V4 टनल बनाई जाती है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है RD का, राउट डिस्टिंग्विशर का, राउट टारगेट एक्सपोर्ट का, राउट टारगेट इंपोर्ट का, जो इन डिवाइसेस के ऊपर लगाई जाती हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो होती हैं यहाँ से निकलने के बाद, ये नेटवर्क यहाँ से निकलने के बाद BGP में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इस टनल के थ्रू यहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पहुँच जाती है। तो ये नेटवर्क पहुँच जाती हैं, लेकिन ट्रैफिक के आने के लिए जब ट्रैफिक आता है तो ट्रैफिक यहाँ पर आके हैंगअप हो जाता है, क्योंकि आने के लिए उसको MPLS नेटवर्क से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर हम MPLS को कॉन्फ़िगर करते हैं। लेबल्स का कॉन्सेप्ट आता है, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का। बात डिस्कशन ये करना था कि इन केस ऑफ द MPLS, ISP का जो रूटर है दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू सेंड अवर नेटवर्क IDs कि हम कहाँ भिजवाना चाहते हैं। अगर ये हमारा हेडक्वार्टर है, ये ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है, ये ब्रांच 3 है, तो ISP हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमारी नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा विद द हेल्प ऑफ द राउट टारगेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। और अगर नेटवर्क नहीं जा रही है तो वी विल कॉन्टेक्ट टू द ISP कि भाई नेटवर्क नहीं जा पा रही है, जरा चेक करें। तो ये ओवरले मॉडल था जिसमें हम अपनी नेटवर्क ISP को देते हैं।
बट MPLS भी अनसिक्योर है। तो जितने भी VPN हमने पढ़े ये अनसिक्योर है। जो लोग सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं उनको ये मालूम है कि हमें सिक्योरिटी के लिए IPsec की ज़रूरत पड़ती है, और IPsec एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है। फेज 1 के पैरामीटर्स अलग हैं, फेज 2 के पैरामीटर्स अलग हैं। उसमें से एक भी पैरामीटर मिसमैच हो जाए ऑथेंटिकेशन में, इनक्रप्शन में, DFI में, या ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर, या पेयरिंग के अंदर, या पासवर्ड के अंदर, तो व्हाट विल हैपन, टनल अप नहीं आती है। तो एक बड़ा क्रिटिकल इशू है कि अगर साइट्स मल्टीपल्स हो जाएं, थाउजेंड्स ऑफ साइट्स हो जाएं, तो यू विल क्रिएट दी थाउजेंड्स ऑफ टनल्स, सबकी ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ दी SD-WAN आपको ये ट्रबल शूटिंग करनी नहीं है। SD-WAN के अंदर IPsec बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। आपने एक डॉट भी नहीं लगाना है, सिंगल डॉट। किसके लिए? IPsec के लिए। सारे पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट सेट हैं। वी आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग एनी डॉट फॉर दी IPsec। तो इसकी ट्रबल शूटिंग पूरी नलीफाई हो गई। सिर्फ रीचेबिलिटी होनी चाहिए, तो रीचेबिलिटी तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप करा ही रहे हो। तो यहाँ पर इनकी जो कनेक्टिविटी है आपस में, ये कनेक्टिविटी हम इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू करा ही रहे हैं, वो चाहे MPLS के थ्रू कराएं या इसके थ्रू, ये खुद IPsec टनल को फॉर्म्ड करेंगे। तो एक बहुत बड़ा जो हेडेक था, जो ट्रबल शूटिंग करते परफॉर्मेंस डिग्रेड होती, टाइम लगता, वो टाइम भी बचा लिया, परफॉर्मेंस को हमने अनहेंस भी कर दिया। आई थिंक यहाँ तक पुरानी जो टर्मोलॉजी थी वो सबको क्लियर हो गई होगी जिन लोगों ने पढ़ रखी है। अब SD-WAN की तरफ चलते हैं, बट SD-WAN से पहले हम 3 तरह के प्लेन का डिस्कशन करेंगे। एक टर्म होता है मैनेजमेंट प्लेन, एक टर्म होता है कंट्रोल प्लेन, एक टर्म होता है डेटा प्लेन। जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं वो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं मेरी, या पहले भी क्लास ले चुके हैं? फर्स्ट टाइम है सर। सर फर्स्ट टाइम है। CCNP जिन लोगों ने कर रखा है उनसे क्वेश्चन पुटअप है, आने वालों को नहीं पता है। ये 3 प्लेन हमें पता होगा क्योंकि ये सारे प्लेन SD-WAN में भी इस्तेमाल होंगे। R1 राउटर है, R2 राउटर है, R3, 3 राउटर हमारे पास हैं। इनको हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, R1, R2 और R3। लेट्स से इनके IP एड्रेसेस मैंने यहाँ डालने हैं 23.1.1.2.3, 13.111.3। ये इनके लैन सेटअप हैं। 10.10.10, 10.10.30 और 10.10.20। सिस्को पर जिन लोगों ने काम किया है दे नोज वेरी वेल कि सिस्को की डिवाइस में कोई बेसिक IP भी नहीं पड़ा होता। हमें सिस्को की डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए जब अनबॉक्स करते हैं, हो सकता है कुछ लेटेस्ट डिवाइसेस के अंदर अब आना शुरू हो गया हो, फिलहाल अभी तक तो इन्फॉर्मेशन ये है कि बेसिक कमांड हम डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसके थ्रू डालते हैं? कंसोल केबल के थ्रू। तो अगर मैंने इन तीनों डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना पड़े फर्स्ट टाइम, तो क्या इसमें कंसोल केबल लगानी पड़ेगी? यस और नो? जी भाई। यस सर। कंसोल केबल अगर हमने लगा दी और उसी ही लैन के ऊपर अगर हम एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पर एक IP एड्रेस डाल दिया, टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया या SSH कर दिया, टेलनेट अनसिक्योर है, SSH सिक्योर है? अनसिक्योर। टेलनेट जो है अनसिक्योर है। हम देख सकते हैं वायरशार्क में क्या कॉन्फ़िगरेशन जा रही है। SSH जो है पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है, ये पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है TCP के। तो कहने का मकसद ये था कि वॉट एवर यू आर डूइंग, चाहे आप इन तीनों डिवाइसेस को कंसोल केबल के थ्रू कॉन्फ़िगर करें या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन SSH या टेलनेट के थ्रू करें, जिसमें आपने
बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया हो, आईपी डाले हो, मास्क डाला हो, या स्विचेस वगैरह हो तो उसमें वीलांस बनाए हो, स्विच में के अंदर वीलांस बनाए हो, या आपने राउटिंग की हो, या आपने सीसीएनपी पढ़ा है, जिन लोगों ने, आपने पीवीआर का नाम सुना होगा, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग सुना है किसी ने नाम? सीसीएनपी किसी नो ने नो सर। सीसीएनपी में नहीं पढ़ा? सर सीसीएनपी नहीं किया मैंने, जिन सीसीए ने किया। ने भी सीसीएनपी किया है उसने पीवीआर पढ़ा होगा, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। तो एनी काइंड ऑफ पॉलिसी आप बना रहे हो, या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो विद रेस्पेक्ट टू द आईपी एड्रेस, या राउटिंग हो, वो जितना भी आप कर रहे हैं वाया कंसोल के थ्रू, या आफ्टर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन वाया एसएसएच और टेलनेट के थ्रू, ये किसका पार्ट है? मैनेजमेंट प्लेन का। ये किसके अंडर में आता है? मैनेजमेंट प्लेन में। लेट से आपने इस डायग्राम पे कॉन्फ़िगर कर दिया ओएसपीएफ, ये भी मैनेजमेंट प्लेन से ही आपने किया। जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, जब कॉन्फ़िगरेशन आप कर देंगे, तो हर एक राउटर क्या करेगा? अपना हेलो एक दूसरे को भेजेगा, इनकी नेबरशिप बनेगी, टॉपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होगी, और लेट से इस, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये सारे इंटरफेस अगर फास्ट ईथरनेट हो जाएं, सारे इंटरफेस अगर फास्ट ईथरनेट हो, तो फास्ट ईथरनेट की कॉस्ट कितनी होती है? सीसीएनए में पढ़ा होगा भाई, व्हाट इज द कॉस्ट मैट्रिक ऑफ द ओएसपीएफ इन फास्ट ईथरनेट? आज ही पढ़ा रहा था मैं ओएसपीएफ का टॉपिक, कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया था आप में से। फास्ट ईथरनेट की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट का फार्मूला होता है कॉस्ट इक्वल टू 10⁸ ऑब्लिक इंटरफेस बैंडविड्थ। तो फास्ट ईथरनेट की कॉस्ट 1 निकल कर आती है। तो अगर R1 पे अगर हम राउटिंग टेबल चलाते हैं, तो उसके पास हमें एक ये वाला नेटवर्क पे फोकस करना है और एक इस पे। अगर इस पे अगर हम फोकस करें तो एक रूट हमारे पास O से आएगा 10.10.2.0/24, एडी कितना होगा? 110 होगा। कॉस्ट कितना होगा? यहाँ से अगर हम जाते हैं तो ये कॉस्ट 1, ये कॉस्ट 1, और यहाँ से जाते हैं तो ये 1, ये 1 और ये 1। तो यहाँ से कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 3 पड़ रहा है। यहाँ से कितना पड़ रहा है? 2 पड़ रहा है। तो लोएस्ट मैट्रिक पाथ आएगा यहाँ पे 2, और इसको नेक्स्ट ऑफ जो मिल रहा होगा वो आने के लिए ये मिल रहा होगा। ऐसी दूसरा जो रूट आ रहा होगा वो 10.10.3.0/24 एंड 110, 1 कॉस्ट एंड 1 कॉस्ट, दैट इज हो जाएगा 2, और ये मिल जाएगा 13.113 से। नाउ ये जो रूट्स आए हैं, ये रूट हमने लिखे हैं या ये ऑटोमेटिकली आए हैं? जी भाई, यानी सबने किया है? ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिकली आए। तो ये रूट जो ऑटोमेटिकली आए हैं, ये प्रोटोकॉल का फंक्शन है, और हर एक प्रोटोकॉल में अपने रूट, इसको, इसने, इसको, हर एक ने एक दूसरे को रूट्स भेजे हैं। तो ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ टोपोलॉजी टेबल हो या राउटिंग टेबल हो, ये किसका पार्ट है? कंट्रोल प्लेन का। कंट्रोल प्लेन कौन सा पार्ट है? जो राउटिंग टेबल का एक्सचेंज है या टोपोलॉजी का एक्सचेंज है, दैट इज कमिंग अंडर द कंट्रोल प्लेन। तो यहाँ पे हर एक राउटर अपनी इंडिविजुअल टेबल को इसको भी भेजता है, इसको भी भेजता है, ऐसी ये डिवाइस इसको भी भेजता है, ये इसको भी भेजता है, ऐसी ये वाला डिवाइस जो है ये इसको भी भेजता है और इसको भी भेजता है। तो हर एक राउटर एक दूसरे को जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उनको भेज रहा है। दैट इज द पार्ट ऑफ द कंट्रोल प्लेन। जो कॉन्फ़िगरेशन किया, जो पॉलिसीज लगाई, दैट इज कमिंग अंडर द मैनेजमेंट प्लेन। एंड थर्ड प्लेन इज, लेट से यहाँ पे एक डिवाइस है ए, इसका आईपी एड्रेस 1 है। यहाँ पे एक डिवाइस है, इसका आईपी एड्रेस 10.10.3.3 है। अब ए वांट्स टू कम्युनिकेट टू, ये ए है, ये बी है, ए वांट्स टू कम्युनिकेट टू बी। तो इसका जो ट्रैफिक है ये यहाँ से निकल कर यहाँ जा रहा है। तो ये जो जा रहा है दैट इज क्या है? डेटा ट्रैफिक है। जो डेटा ट्रैफिक है दैट इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? डेटा प्लेन का। ये किसका पार्ट है? डेटा प्लेन का।
हम बात कर रहे हैं सिस्को की, याद रहे। तो सिस्को में जब हम कमांड चलाएंगे शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, तो शो आईपी राउट में आपको जो भी दिखाई दे रहा है दैट इज द पार्ट ऑफ कंट्रोल प्लेन, जिसको क्या कहा जाता है, रिब, RIB, रिब, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस बिलोंग्स टू द कंट्रोल प्लेन। एंड डेटा जो प्लेन है, इसमें एक टर्म आता है फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। एंड फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस इज रिलेटेड टू दी सेफ। शो आईपी सेफ जब सिस्को में कमांड चलाते हैं तो इसकी जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, फिब। और फिब कहां से कैलकुलेट होती है, फिब कहां से कैलकुलेट होती है, फिब के अंदर रूट कहां से आएगा, रिब से। तो फिब जो कैलकुलेट की जाएगी वो कहां से की जाएगी, फ्रॉम RIB। तो RIB के अंदर मल्टीपल पाथ हैं। जो बेस्ट पाथ है वो किस में होगा, डेटा प्लेन में होगा, या डेटा प्लेन का एक और भी नाम होता है दैट इज नोन एज फॉरवर्ड प्लेन। अब ये बताना इसलिए जरूरी थे तीनों प्लेन कि यहां पर जब आप SD-WAN में जाएंगे तो ये एक कंट्रोलर है जो मैनेजमेंट प्लेन को हैंडल करेगा, ये दूसरा कंट्रोलर है जो कि कंट्रोल प्लेन को हैंडल करेगा, ये तीसरा कंट्रोलर है जो कि ऑथेंटिकेटर प्लेन या ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन को कंट्रोल करेगा। तो वहां पर एक प्लेन हमारा बढ़ गया। यहां पर डेटा प्लेन किधर गया, डेटा प्लेन इनके पास रहेगा, डेटा प्लेन यहां पे रहेगा। डेटा प्लेन जो VH और CH डिवाइसेस हैं उनके पास रहेगा। दे विल कंट्रोल द डेटा प्लेन, यानी ट्रैफिक को ये हैंडल करेंगे। लेकिन जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होगा वो मैनेजमेंट प्लेन इस V मैनेजर के थ्रू हैंडल किया जाएगा, V स्मार्ट के थ्रू कंट्रोल प्लेन हैंडल किया जाएगा, और V बॉन्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। जब कभी भी कोई भी नई डिवाइस लॉगिन करेगी, ऑन होकर आएगी, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर होगी, तो सबसे पहले ये इससे ऑथेंटिकेट होगी। यहाँ तक बेसिक मैंने थोड़ा सा रफली व्यू दे दिया। अब हम SD-WAN की तरफ चलेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, जितना बताया गया है सिर्फ उतना, आगे का क्वेश्चन नहीं। नो सर। ऑथेंटिकेशन प्लान एंड और हाँ जी। आपने और कुछ दूसरे बोला या हम्म ऑथेंटिकेशन प्लान बोले थे और दूसरा क्या नाम था या साइंटिस्ट ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन। स्पेलिंग? ऑर्केस्ट्रा होती है म्यूजिक में, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा जी। है कहीं बांसुरी होती है, कुछ तबला होता है, कुछ और होता है। तो वो क्या करते हैं, आपका समा बांध के रखते हैं सारा, क्या नहीं। हम्म, तो ऐसे ही यहाँ पे बांधा जा रहा है सबको। किसके साथ में बांधा जा रहा है, टाई अप किया जा रहा है किसके साथ में, V बॉन्ड के साथ में। जब तक वो V बॉन्ड के साथ टाई अप नहीं होंगे वो आगे काम नहीं हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल हर एक चीज को लेके चलेंगे। यहाँ हमने एक इंट्रोडक्शन सारा दे दिया कि पुरानी टेक्नोलॉजी जो है नई टेक्नोलॉजी से कितनी यहाँ पे मैच कर रही है। तो जब तक पुरानी चीजें नहीं आती हैं बड़ा मुश्किल है कि नई चीज। क्वेरी, एक क्वेरी था सर कि पुराने में तो क्या क्या आना चाहिए, तो CCN पे पूरा करना जरूरी है या? भाई मसला ये है कि जब हम यहाँ पर ये डिस्कशन करेंगे कि PVR होता है, तो जिसको PVR नहीं पता, हम ये नहीं समझा सकते कि SD-WAN में PVR को बोलेंगे AAR, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। तो जब आपको जब PVR ही नहीं होता है तो फिर हम आपको समझाएं कैसे फिर। तो हम चलो डायग्राम के थ्रू तो आपको अंडरस्टैंड करा देंगे, बट आपने कभी अपने हाथों से किया तो नहीं था ना। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? हाँ हाँ, क्लियर। एक्चुअली हम लोग मैं सिस्टम साइड से हूँ। हाँ जी। मैं सिस्टम साइड से हूँ, मतलब सर्वर वर्चुअलाइजेशन साइड से हूँ, और को बेसिकली नेटवर्क। SD-WAN के करने के लिए बाकी तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाएं, वो आपको कह देंगे आपसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने पैसे जमा
हाँ वो मैं तो ये है। कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा जितना बिजनेस है वो मेरे स्टूडेंट ही चलाते हैं। तो जब तक आपको CCNP ना आता हो, रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी पैसे खराब ना करें एसडीएन में, ओके। क्योंकि और फायरवॉल में भी नहीं करना चाहिए। नहीं, दोनों। अगर CCNP आता है तो लिटिल बिट नॉलेज फायरवॉल की भी अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है थोड़ी बहुत। ओके। ओके। CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग अगर आता है, एटलीस्ट हाँ। राउटिंग भी आता है, CCNA आपने कर रखा है और CCNP आता है आपको, और ढंग से पढ़ रखा है। ऐसा नहीं कि भाई जैसे शादी करनी है बच्चे की तो ग्रेजुएट है बस, तो ऐसा काम नहीं करने का है। आता भी हो उसको, ठीक है ना, वाह वाह नहीं करना है। सर्टिफिकेशन तो सारे चोरी से होते हैं, एवरीबॉडी नोज, जितने ऑनलाइन है। हाँ वो Till तो you will not follow the dump procedure, you cannot qualify the examination. क्वालिफाइड। चाहे वो CCNA हो या CCI हो, सबका एक पैटर्न है, बिजनेस पॉलिसी बनी हुई है, राइट। तो नॉलेज एक अलग पार्ट है, एंड CCI का नंबर लेकर आना एक अलग पार्ट है, ठीक है। दोनों अलग अलग पार्ट हैं और दोनों ही जरूरी हैं, मजबूरी है, ठीक है ना। तो जब तक CCNP नहीं होता ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसला है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे कि मैं अगर यहाँ सिलेबस को एक्सप्लोर करूँ, जो यहाँ पर सिलेबस होगा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको वैसी नज़र आएंगी। तो अभी तो हम डिस्कशन जो कर रहे थे, वो डिस्कशन ये हो रहा था कि भाई SD-WAN से पहले हम इसको लेकर जा रहे थे, क्या SD-WAN है। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्या होते हैं, क्या ये ट्रांसपोर्ट किधर होता है, वी मैनेजर का फंक्शन क्या है, वी बॉन्ड का फंक्शन क्या है, OMP क्या करता है, BFD क्या करता है। फिर ये सर्टिफिकेट्स वगैरह डाले जाएंगे, क्योंकि सबसे टफ टास्क ये है SD-WAN में कि आपको कीज चाहिए। दूसरा ये कि ये आपके लैपटॉप पे नहीं हो सकता है, इसके लिए एक बड़ा सा सर्वर चाहिए, 8-10 लाख का है जी, बड़ा सा सर्वर चाहिए। पुराना भी लोगे तो आधे पैसों में मिलेगा, क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी कंज्यूम करता है। तो या तो हम लैब को कराते ही नहीं है, अक्सर इंस्टीट्यूट वाले सिर्फ थ्योरी पढ़ा के निकाल देते हैं। हमारे पास शुक्र है कि 2 सर्वर लगे हुए हैं, तो आपको लैब जब तक आप कोर्स करेंगे आपको SD-WAN का एक्सेस फ्री मिलेगा। अदरवाइज SD-WAN की जो लैब है, जो एक्सेस लोग लेते हैं, वो 4-5-6 हज़ार रुपये का महीने का पड़ता है, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होता है। तो कीज हमें चाहिए होती हैं, डोमेन नेम के साथ रजिस्टर्ड होता है। हमारा जो डोमेन नेम रजिस्टर्ड है पहला के साथ में, वो है NCP NETWR के कैप्स के अंदर, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम है। SD-WAN के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन नेम रजिस्टर्ड करना होता है। तो वहाँ से फिर हम वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर वो हमें डॉट विप्टेला या प्रोविजनिंग फाइल देता है, जिसके अंदर हमने आई थिंक 27 या 25 डिवाइसेस का लाइसेंस ले रखा है, यानी कीज ले रखी है। बिना कीज के ये लैब परफॉर्म नहीं हो सकती। जब आप लैब करेंगे तो ये कीज आपके डिवाइस में डाल दिया जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट दे रखा है कि ये VPN है, बेसिकली CCNP के अंदर जिन लोगों ने VRF पढ़ा है, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये इक्वलेंट है SD-WAN में VPN के। बात समझ में आ रही है। वहां पर VRF के थ्रू सेपरेट करते हैं, यहाँ पर VPN के थ्रू सेपरेट करते हैं, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। वहाँ VRF नाम से बनाते हैं, यहाँ VRF नाम से बनाते हैं, यहाँ VPN नंबर से बनाते हैं। ये 16 बिट्स का नंबर होता है। तो यहाँ पे कुछ VPN या कुछ VRF यू कैन से रिजर्व है, जैसे मैनेजमेंट के लिए ये रिजर्व है, ट्रांसपोर्ट के लिए ये रिजर्व है। यानी ये जो डायग्राम है आपके पास, इस डायग्राम में ये VPN 0 है, ये सारा VPN 0 है जो ब्लैक वाला है। और इन सब के मैनेजमेंट जो होते हैं, हमने एक ही का मैनेजमेंट ले रखा है। ये मैनेजमेंट VPN है, जो VPN 512 है, 512 है। तो बाकी जो बचते हैं वो सर्विस VPN कहलाते हैं। 3 तरह के VPN में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे OSPF में टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि भाई एक क्या बोलते हैं उसको, RID होती थी, राउटर ID, ऐसे यहाँ पे सिस्टम IP का कॉन्सेप्ट है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें वहाँ पर डिफाइंड करनी पड़ती हैं सारी की सारी। जो भी VH या CH डिवाइस होगी उसके अंदर हम कमांड लाइन के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करेंगे।
कमांड लाइन के थ्रू उतनी कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी जितनी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए। अब कंट्रोलर्स की जरूरत क्यों पड़ती है वो आगे भी SD1 में डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे। मैक्सिमम जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो GUI बेस्ड होगी, जो कि आसान है। कमांड लाइन टू मच टफ है तो GUI का यूज किया जाता है। तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन की जाती है इन टेम्पलेट्स के थ्रू की जाती है। टेम्पलेट को ऐसे मान के चल लें जैसे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने इंजीनियरिंग के अंदर फॉर्म भरना हो, IT के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और भी स्ट्रीम हो सकती हैं इंजीनियरिंग की। तो क्या इनके फॉर्म अलग अलग होते हैं? IT का फॉर्म अलग होता है, कंप्यूटर साइंस का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग, मैकेनिकल का अलग, या एक ही फॉर्म होता है? कोई कॉमन थोड़ा टेस्ट होता है या अलग हाँ अलग हाँ टेस्ट होते हैं? सिंगल ही होता होगा। एक कॉमन फॉर्म होता है, राइट? हाँ उस हाँ कॉमन फॉर्म जो है वो अपना या तो फिजिकल होता है, या आज की डेट में जब से ऑनलाइन हुआ है वर्चुअल हो गया, उसको आप डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन फिलअप करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम लिखते हैं ना, माई नेम, माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे काम के लिए टेम्पलेट बनते हैं यहाँ पे। यानी जो सिस्को में IP डालते थे, IP का टेम्पलेट बनेगा। सिस्को में हम इंटरफेस क्या नाम है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स डालते थे, उसका टेम्पलेट बनेगा। सिस्को में हम VPN बनाते थे, उसका टेम्पलेट। हर एक काम के लिए एक टेम्पलेट बनेगा, हर एक काम के लिए एक टेम्पलेट बनेगा। तो फिर जो आप टेम्पलेट, यानी जिन्होंने चेक पॉइंट कर रखा है उनको पता होगा वहां पे क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट हैं, जो अब आपकी इंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट हैं, उसको आप कहाँ कॉल कर लेंगे? डिवाइस टेम्पलेट में कॉल कर लेंगे और फिर इसको पुश कर दिया जाता है। इसी तरीके से जैसे CCNA के अंदर, NP के अंदर जब आपके पास कोई राउटर होता है, R1 और R2 कोई राउटर होता है, और यहाँ पर कोई नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल दिस वन, और यहाँ पर एक IP एड्रेस है ये .2। तो अगर मैंने OSPF लगाया या मैंने BGP लगाया या स्टैटिक लगाया, तो मुझे 20 की जो नेटवर्क यहाँ पर डिस्प्ले होगी, वॉट एवर AD और मैट्रिक लीव इट, नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? ये होगा ना आपके पास R1 राउटर पे नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा इसका? यही होगा, कुछ और होगा? हाँ यही होगा। लेकिन इन केस ऑफ दी SD-WAN के अंदर जो नेक्स्ट हॉप होता है, यानी जो प्राइवेट NIDs आपके पास आती हैं, उसका जो नेक्स्ट हॉप होता है, वो नेक्स्ट हॉप ही क्या होता है? T-log होता है। तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आकर बदलेगी, बट अगेन T-log का जो नेक्स्ट हॉप होता है वो IGP के अंदर ही होता है, जैसे कि ये होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें वक्त लगेगा समझने के लिए। ये VPN के राउट हो गए। अच्छा, इसी तरीके से एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, ये ECMP। जैसे कि यहाँ पर R1 और R2 राउटर है, जिन लोगों ने OSPF पढ़ रखा है, अगर ये ईथरनेट हो, ये फास्ट ईथरनेट हो, ये फास्ट ईथरनेट हो, और मुझे इस A.B.C.D नेटवर्क पर जाना हो, इसकी कॉस्टिंग 1 है, इसकी कॉस्टिंग 1 है, इसकी कॉस्टिंग 10 है। यहां से अगर आपके पास ट्रैफिक इन होता है तो वो ट्रैफिक कौन से लिंक से जाएगा R2 के ऊपर? इसका कॉस्ट लो होगा। तो लो कॉस्ट किसका? इसका होगा, यहाँ से जाएगा, राइट? लेकिन SD-WAN ये कहता है कि हम इस पे डील नहीं करते, हम किस में डील करते हैं? ECMP, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। यानी इसका कहना ये है कि अगर हमें जाना हो इस नेटवर्क के ऊपर और हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका ट्रैफिक जब यहाँ पर आएगा तो हमें उससे मतलब नहीं है बैंडविड्थ से, हम ऐसे भी ट्रैफिक भेजेंगे और हम इस ट्रैफिक को ऐसे ही भेजेंगे। यानी जितने भी ट्रांसपोर्ट होंगे सबसे ट्रैफिक जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। फिर पॉलिसीज़ हैं कि जो पॉलिसीज़ होती हैं, दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं।
ये पॉलिसीज जो पढ़ेंगे ये बेसिक कोर्स में पढ़ेंगे, और ये लोकलाइज जो हैं ये क्यूएस से रिलेटेड है, क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड। तो पहले जिन लोगों ने क्यूएस, अक्सर लोगों ने सीसीएनपी में भी क्यूएस नहीं पढ़ रखा होता है, तो एक लेक्चर में 2 घंटे का पहले क्यूएस का दूंगा, उसके बाद कैसे SD-WAN पे क्यूएस इम्प्लीमेंट करेंगे फिर उसको समझाया जाएगा, बट ये एडवांस वाले में होगा। जब ये सारी टर्मिनोलॉजीज खत्म हो जाएंगी ऊपर की, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है OSPF क्या होता है, हमें EIGRP बताने की जरूरत नहीं, यानी जितना आप CCNA में पढ़ चुके हो, ना हमें ACL के बारे में डिस्कशन करना है, ना हमने आपसे डिस्कशन करना है कि वर्जन 4 क्या होता है, ना हमने आपसे डिस्कशन करना है BGP के बारे में, ना OSPF के बारे में, ना EIGRP के बारे में डिस्कशन करना है, ना स्टैटिक के बारे में। ये तो आपको आता है CCNA CCNP के अंदर। इसको कैसे इम्प्लीमेंट SD-WAN पे किया जाएगा, डिफरेंट पोर्टल पे किया जाएगा, दैट इज द डिस्कशन। तो यहाँ से फिर ये लैब पार्ट शुरू हो जाएंगे कि कैसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी, क्योंकि जितना भी ये बड़ा डायग्राम है इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी, चलो सिस्को का राउटर है, ये भी सिस्को का राउटर है, चलो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, बट SD-WAN की जो डिवाइसेस हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाएगी, तो वो कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कशन जो है फिर यहाँ पर होगा। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमने फॉलो करनी है। जब ये यहाँ तक पहुँचेंगे हम, यहाँ तक, तो आप मानिए कि यहाँ जाने तक जो है आपकी जो लैब CLI पे रेडी हो जाया करती थी OSPF लगाकर, यहाँ पर ग्राफिकली टेम्पलेट्स बना के अब आपकी लैब रेडी हुई है। अब ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कि लेट्स से इफ यू हैव द R1 एंड R2, और मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी होती, केवल इतनी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती कि यहाँ पर ये A नेटवर्क है, यहाँ पर ये B नेटवर्क है, इसको आपस में कम्युनिकेट कराना है तो मुझे IP एड्रेस डालने पड़ते, मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल्स लगाना पड़ता, और यहाँ पे एक डिवाइस आपके पास होती फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और एक डिवाइस यहाँ पर होती। हम चाहते कि ये डिवाइस जो है ये 1 डिवाइस है, लेट से ये 2 डिवाइस है, ये 3 डिवाइस है, ये डिवाइस नंबर 4 है, हम ये चाहते कि ये वाली डिवाइस इससे कम्युनिकेट ना करे, तो हम क्या करते इसके अंदर फिर ACL लगाते, चाहे हम ACL यहाँ पर लगाते, चाहे हम ACL इसके पास यहाँ लगाते, यहाँ लगाते, यानी वो काइंड ऑफ पॉलिसीज लगाते। तो वो पॉलिसीज जो आएंगी वो कहाँ पर आएंगी, वो यहाँ से शुरू होंगी। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज हैं आपके पास के जो PVR था, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, वो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की जगह पर यहाँ पर AR लगेगी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट बेस लगेगी। फिर वहां पर CCNA में हम पढ़ते थे एक टर्म LMAD एंड मैट्रिक, किसी को अगर याद हो, पढ़ा है किसी ने LMAD मैट्रिक भाई? किसी ने LMAD मैट्रिक पढ़ा है कहीं पे कि नहीं पढ़ा है? नहीं सर। क्यों? नो सर। तो CCNA में क्यों नहीं पढ़ा भाई LMAD मैट्रिक? CCNA भी किया नहीं। फिर कैसे काम चलेगा फिर पढ़ाएंगे क्या? सर CCN में मैंने तो नहीं पढ़ा सर। सर AD एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है सर। और मैट्रिक होता है, लेकिन LM किसी ने नहीं पढ़ा, बिना इसके तो काम ही नहीं होता है। चलो ठीक है, अंडरस्टैंड करवा देंगे क्या होता है जब पढ़ाएंगे तो यहाँ सर मतलब मैं ये बोलना चाह रहा कि पहले CCNP मतलब कर लेते हैं, उसमें CCNA का सारा कवर हो जाएगा ना, अगर मैं स्टार्ट में करता हूँ CCNP से? तो मैं ये कहूंगा कि जनाब एक काम करें, PhD भर दें फॉर्म, सारे ही कवर हो जाएगा 0 से लेके MPhil तक। नहीं सर मतलब CCNP में ये वाला सब कवर हो जाएगा हम जो कह रहे हैं वो हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं PhD का फॉर्म भर दें, उसमें MPhil भी हो जाएगा, गेट भी क्लियर हो जाएगा, PhD भी हो जाएगी, ऐसा ही है कुछ? नहीं ऐसा तो नहीं तो ऐसा नहीं है ना, तो वैसा है तो वैसे ही करने का होता है। तो मसला यही है कि ये सारी चीज़ें कोई भी इंस्टीट्यूट वाला आपको नहीं बताता कि किसको करने के लिए क्या चाहिए। सबको ये चाहिए होता है कि बैच शुरू हो गया है, शॉर्ट कट बैच शुरू हो गया है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और ट्रेनर बहुत हाई फाई है और अंग्रेज़ी में बातें करता है, ठीक है ना, जहाँ पे आप जो है फिर उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो आपको पहले ही पता हो कि क्या चीज़ आनी चाहिए, किसको क्या करने के लिए। तो देखिए ये जो पैरामीटर्स थे बेसिकली इनका काम होता था राउट सिलेक्शन। क्या होता था? राउट सिलेक्शन, कि हम कौन से रास्ते को प्रीफर करें, किसको प्राइमरी पाथ बनाएं, किसको बैकअप पाथ बनाएं। तो इन तीनों तरीके से प्राइमरी और बैकअप पाथ बनाया जा सकता है।
इन केस ऑफ द SD-WAN में क्या होगा, जब हम प्राइमरी और बैकअप पाथ बनाएंगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा टी लॉक का। टी लॉक के थ्रू हम प्राइमरी और बैकअप पाथ बना सकते हैं। इसी तरीके से CCNP के अंदर एक टर्म होता था राउट फिल्टर। किसने NP किया भाई इसमें जो ऑनलाइन है? चंदन। यस। राउट फिल्टर कैसे करते हैं CCNP में? राउट फिल्टर 5 टाइप्स होता है। एक मैट्रिक्स होता है, प्रोटोकॉल को फिल्टर कर सकते हैं। और कैसे एडी करते हैं, क्या क्या मेथड होता है प्रोटोकॉल राउट फिल्टर करने का? एक इन केस मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आर देयर, ISSP OSPF, तो हम लोग राउट फिल्टर करके OSPF को ISS को डिवाइड कर सकते हैं। और एडी बेल को फिल्टर करते कैसे हैं, क्या लगाते हैं राउटर फिल्टर के लिए, क्या करना पड़ता है? कमांड चलाते हैं राउट फिल्टर का। क्या चलाते हैं? राउट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वो तो रेडिस्ट्रीब्यूशन में, तो रेडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया आप रूट भेज रहे हैं। मैं राउट फिल्टर की बात कर रहा हूँ। राउट फिल्टर किया जाता है CCNP में ACL प्लस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ। ये पहली बार नाम सुन रहे हो शायद। HCL प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स प्लस डिस्ट्रीब्यूट, ये भी राउट फिल्टर होता है। तो राउट फिल्टर जो कर सकते हैं ACL बनाकर, ACL एक मैच होता है, सोर्स ये हो डेस्टिनेशन ये हो, और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के थ्रू हम उसको राउटिंग टेबल में पॉपुलेट करते हैं या अनाउंसमेंट करते हैं। तो रूट फिल्टर हम कर सकते हैं इसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अलोंग विद दी ACL के साथ में, प्रीफिक्स के साथ में। तो राउट फिल्टर यहाँ पे हम करेंगे। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता था हब एंड स्पोक का। किसी ने पढ़ा है CCNP में हब एंड स्पोक सिनारियो? नहीं पढ़ा? चंदन नहीं पढ़ा भाई? जी। फिर कैसे काम चलेगा? ये क्लाउड हो गया, ये हमारे पास हेडक्वार्टर हो गया, ये हमारे पास ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया 2 हो गया। यहाँ पर A नेटवर्क है, यहाँ पे B नेटवर्क है, यहाँ पर एक C नेटवर्क है। हम चाहते हैं कि A नेटवर्क और B नेटवर्क जब ये बात करेंगी तो किसके थ्रू करेंगी? थ्रू दी हेडक्वार्टर के थ्रू करेंगी। तो हेडक्वार्टर को क्या बनाया जाएगा? हब, और इसको क्या बनाया जाएगा? स्पोक बनाया जाएगा। तो ये काम हम इसमें भी कर सकते हैं कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो ये है हेडक्वार्टर आपके पास, इसको हम हेडक्वार्टर बनाएंगे। ये यहाँ से बात करने के लिए पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करेगा। कोई पर्पस हो सकता है कि जो ट्रैफिक जा रहा है उसको मॉनिटर किया जाए ना। इसी तरीके से यहाँ पे CCNA में नेट पढ़ा है आप लोगों ने? जी भाई, नेट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। हाँ जी, कितने तरह का होता है बताओ? मैंने पढ़ा नहीं है, मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ। नेट 2-3 तरीके का होता है। एस नेट होता है, डी नेट होता है, सोर्स नेट बोलते हैं, डेस्टिनेशन नेट बोलते हैं। CCNA में डीनेट भी होता है, पढ़ते हैं? किसने पढ़ा है अभी? कौन से इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है डीनेट CCNA में? सर मैं तो CCNA पढ़ा ही नहीं हूँ। सर नेट होता है सर, पब्लिक से प्राइवेट में सर वो करता है, कन्वर्ट करता है सर। CCNA पढ़ा में नेट पढ़ते थे, CCNA में मैंने जो नेट पढ़ते थे उसमें एक नेट होता था STATIC स्टैटिक नेट, एक नेट होता था DYNAMIC डायनेमिक नेट, और एक होता था पैट। ये 3 तरह का ही हम नेट पढ़ते थे CCNA में। बट जब हम पोलो ऑल्टो की तरफ जाते हैं या LTM की तरफ जाते हैं या FortiGate की तरफ जाते हैं तो पता लगता है कि नेट के 2 फ्लेवर हैं। एक S नेट कहलाता है, एक D नेट कहलाता है। ये सारे के सारे S नेट हैं जितने आप देख रहे हैं, इसमें D नेट नहीं है। जब पोलो ऑल्टो LTM और ये पढ़ते हैं तो पता लगता है कि D नेट जो होता है, एक होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, एक होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है, और एक होता है पोर्ट ट्रांसलेशन। तो ये सारे तरह के जो नेट हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बट यहाँ जो नेट है वो केवल एक तरह का नेट है, जिसमें हम नेट पढ़ेंगे केवल S नेट, और S नेट में पढ़ेंगे यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं पैट
या जिसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, बाकी जो नेट है वो एडवांस वाले के अंदर पड़ेंगे, उसमें 4-5 तरह का नेट होगा। अच्छा, जो नेट होता था उसके नेट की भी जो हम पढ़ते आए हैं आज तक, वो नेट जो सीसीएनपी तक हमने पढ़ा था, वो नेट ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये हेडक्वार्टर है और आपके पास ये इंटरनेट क्लाउड से ये ब्रांच कनेक्टेड हो गए, ये आपके पास ब्रांच 2 कनेक्टेड हो गया और ये हेडक्वार्टर हो गया। अब एक टर्म है कि हम यहाँ से रीचेबल तो हैं, कनेक्टिविटी तो है, बट यहाँ से हमने एक, ये तो बीच में आपके पास जो भी कनेक्टिविटी ली है, चाहे वो फ्रेमले के थ्रू हो या आपके पास कोई और मोड हो, यहाँ से हम जाना चाहते हैं किसी आईएसपी के ऊपर और ये जाना चाहता है पूरी दुनिया के ऊपर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वगैरह वगैरह पे, तो हम हेडक्वार्टर पर ही जनरली क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउट डालते हैं जाने के लिए। इसके ऊपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाती है और फिर ये डिफॉल्ट रूट जो है इन ब्रांच पे भेज दिया जाता है। तो हमारा ट्रैफिक जो है, चाहे इस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए यहाँ जाए, तो वो तो ऐसे करके जा रहा है या ऐसे करके इसको एक्सेस कर रहा है, लेकिन इंटरनेट पे जाना होता था तो जो ट्रेडिशनल होता था, जो ट्रेडिशनल आपके पास नेट होता था, उसमें नेट पे जाने के लिए ये डिवाइसेस हेडक्वार्टर से ही होके गुजरती थी। एसडीवैन कहता है कि ये तो वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज है हेडक्वार्टर का, कि यहाँ पर आप ऐसा करें कि इंटरनेट पे जाने के लिए इसको आप ये कहें कि यहाँ से निकलने के बाद या यहाँ से निकलने के बाद आप एक काम करें, इंटरनेट से एक्सेस करेंगे जाके। तो अगर हेडक्वार्टर पे रखी हुई कोई रिसोर्सेज आप एक्सेस करना चाहते हैं, दैट वाज गुड कि आप यहाँ पे चले जाओ, लेकिन आप इंटरनेट पे जा रहे हैं और इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन यूज कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। तो वो कहता है आप कॉन्सेप्ट यूज करो डीआईए का, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, या इसको एक टर्म भी होता है लोकल ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, कि इंटरनेट पे जाना है तो इनको ऐसे इंटरनेट पे निकाल दो सबको, और अगर ये लिंक टूट जाए तो इसको एज ए बैकअप में रखो। तो ये यहाँ पर हम करेंगे, और फिर हाई अवेलेबिलिटी में रिडंडेंसी की ज़रूरत है उसको करेंगे, और ये टर्म है रूट लीकिंग का। सी एमपीएलएस के अंदर वीआरएफ का एक कॉन्सेप्ट आता है। अगर किसी राउटर पे 2 वीआरएफ बनी है, वीआरएफ ए और यहाँ पर वीआरएफ बी, तो यहाँ की जो डिवाइस है ए, इट कैन नॉट कम्युनिकेट टू दिस डिवाइस, बी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती है जब तक कि वीआरएफ लीकिंग का कॉन्सेप्ट यूज ना किया जाए। तो ऐसे ही वीआरएफ लीकिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर एक टर्म है ZTP, जीरो टच प्रोविजनिंग, ये हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर ही होगा। क्या फंक्शन होगा वो डिस्कशन किया जाएगा। तो ये था आपके पास बेसिक कोर्स के अंदर, फिर हम एडवांस कोर्स के अंदर जाएंगे जो नीचे दे रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, इसके अंदर और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली गई हैं जो कि वेबसाइट पे जो सिलेबस पड़ा है उस सिलेबस के ऊपर पड़ा होगा। आपके पास डायनेमिक ऑन डिमांड टनल के बारे में दे रखा होगा, नई चीज़ जो हमारे ncpnuggets.com पे पड़ा हुआ है, और एक टर्म पड़ा होगा सर्विस चेनिंग रूट, सर्विस चेनिंग राउट। ठीक है जी, तो ये सारा मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया इनके बारे में, क्या करना है। बाकी जो सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन है वो भी एडवांस वाले में करेंगे। CLI के टेम्पलेट्स कैसे बनाएं ये भी उसमें करेंगे। VPN की मेंबरशिप क्या होती है, सिक्योरिटी के फीचर्स क्या होते हैं। फिर इसके अंदर दूसरी जो लैब है, इसको अगर मैं यहाँ से बंद कर दूँ और एक मिनट, यहाँ से पहले मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, फिर दूसरी लैब ऑन करनी पड़ेगी। इसमें फायरवॉल भी है क्या सर एसडीएन में? जी, फायरवॉल के अंदर SD-WAN सिस्को की डिवाइस के अंदर है। बाकी हम एक्सटर्नल सर्विस चेनिंग रूट में पढ़ सकते हैं, जो मैंने डिस्कशन किया उसको वहां पे ले जा सकते हैं फायरवॉल मतलब से। इंटरनेट, CSR के मतलब अंदर इंटरनेट को क्या CSR, कंट्रोल कर सकते हैं क्या ब्रांच ऑफिस का? हाँ दोबारा बोलें, क्या बोला? ब्रांच ऑफिस इंटरनेट को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? हाँ, ब्रांच ऑफिस से हम क्या करेंगे कि सर्विस चेनिंग रूट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं हेडक्वार्टर पे। भाई एक तो ये करें कि अगर हमारे पास ब्रांच है 1000, तब या तो 1000 फायरवॉल लगाएं आप हर एक के ऊपर, हर एक साइड पे लगाएं, या आप एक काम करें कि एक कॉमन फायरवॉल लगा दें कहीं पे हेडक्वार्टर के ऊपर किसी सेंटर में, डीसी के अंदर। सारा ट्रैफिक हम्म, क्या करें, वहां से रूट करें, सारा और वहां पे हम्म, फिल्टरिंग लगा दें कौन बंदा क्या काम कर सकते हैं। तो आप पालो अल्टो लगा दें बीच में, Fortinet लगा दें। कैसे लगाएंगे देखेंगे जब करेंगे। तो ये एडवांस लैब है।
एडवांस लैब में ये जो VH डिवाइस है ये बिहाइंड द नेट है। नेट के पीछे अगर डिवाइस हो तो कॉन्फ़िगरिंग कैसा होगा? CCNA में आपने पढ़ा होगा, रिडंडेंसी प्रोटोकॉल पढ़े किसी ने CCNA में? HSRP और ये सब। SRP, VRRP, GLBP। चूंकि विप्टेला सिस्को का नहीं था, विप्टेला को जो बनाया था 3 बंदों ने बनाया था, आमिर, ATIF आतिफ और AZIZ अजीज। ये तीनों बंदे पड़ोसी मुल्क के थे हमारे। इन्होंने बनाया था विप्टेला, सिस्को ने खरीद लिया मुंह मांगे दामों के ऊपर, तो अब उसका नाम क्या हो गया? सिस्को विप्टेला। ऐसे ही पिक्स होता था पहले, ये अलग कंपनी थी, सिस्को ने खरीद के इसको सिस्को पिक्स रखा, फिर इसका नाम ए से रख दिया, पता नहीं क्या क्या रख दिया। ऐसी स्विच सिस्को का नहीं था, सिस्को ने स्विच की कंपनी को खरीदा, फिर वो सिस्को का कैटलिस्ट बन गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल VRRP पढ़ेंगे। यहाँ पर ये टी लॉग एक्सटेंशन है, ये पैसा बचाने के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि जितने आप लिंक्स लेते हैं उतने कॉस्ट आपको पड़ता है, बट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दी टी लॉग एक्सटेंशन वी कैन रिड्यूस दी कॉस्ट। कैसे रिड्यूस करेंगे वो देखेंगे। और ये है CSR सिस्को का, इसके ऊपर इमेज पड़ती है सिक्योरिटी की। जैसे CCNP सिक्योरिटी किसी ने पढ़ा होगा तो 9K की इमेज पड़ती थी सिक्योरिटी के लिए, ऐसे यहाँ पे पैच पड़ेगा सिक्योरिटी का। उसमें हम कर सकते हैं URL फिल्टरिंग कर सकते हैं, IPS इनेबल्ड कर सकते हैं, और जोन बेस्ड फायरवॉल बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जा सकती हैं। ठीक है जी, बात तो समझ में ये आ गई? वे CSR क्या विपेला का ही पार्ट होता है, क्या होता है ये? CSR राउटर है सिस्को का, इसको का राउटर है? बट इसके अंदर सिक्योरिटी की इमेज को डाला जा सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी की इमेज हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें अलग से कहीं ना कहीं फायरवॉल लगाना पड़ेगा, और फायरवॉल के थ्रू उस ट्रैफिक को पास करेंगे, वहाँ पे कंट्रोलिंग कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन ब्लॉकिंग करनी है, URLing करनी है, क्या करनी है। चला जाए भाई, ये डिस्कशन हो गया, बीच में आप लोगों ने पूछ लिया तो मैं उधर चला गया आपकी तरफ। तो हम लौट के अपनी क्लास की तरफ आते हैं। मतलब तो ऐसा ऐसा ही रहेगा कि CCNA से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, अब यही है कि अब ना बताएं तो फिर आपसे 15-20 हजार रुपए लेके कब तक चलेंगे? हमारे जिंदगी तो नहीं गुजरेगी ना। नहीं नहीं तो और फिर मरने के बाद फिर वो यमदूत नहीं छोड़ेगा, फिर वो चित्रगुप्त नहीं छोड़ेगा, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, वो सारी चीजें नोट कर रहा है बैठ के कंधे पे, है कि नहीं है? हाँ वो तो जिंदगी है। में भी मुसीबत करो, मरने के बाद भी मुसीबत, कहीं तो चैन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? या तो कहीं चैन ही लेना चाहिए? मतलब थोड़ा सा मेरे को पाथ चाहिए था, बेसिकली मैं सिस्टम साइड से हूँ ना। मेरे दिक्कत को नहीं है, क्या CCNA शुरू कर गए, CCNA शुरू कर लें आप। आमिर सर से इस नंबर पे कांटेक्ट जी कर जी जी। लेना, 9910 111 हाँ 6 हाँ उनसे कोऑर्डिनेशन परसों किया था मैं, कर और मैं लिया। आपके पास एक बार पहले भी आया था, तो चलिए मैं बात करता हूँ। तब भी प्लान किया था, कुछ कर नहीं पाया। हर बार प्लानिंग में ही रह जाता है। SD-WAN कंपोनेंट्स, जैसे जैसे SD-WAN पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे उसका फायदा नजर आता रहेगा। जैसे कि हमने पीछे ये डिस्कशन किया कि भाई कोई भी VPN आप ले लो, दैट इज नॉट सिक्योर, हर एक पे IPsec लगाना पड़ेगा। सबसे क्रिटिकल इशू है IPsec की ट्रबल शूटिंग। SD-WAN ने ट्रबल शूटिंग ही खत्म कर दी, कोई कमांड ही नहीं चलाना है, बाई डिफॉल्ट सारे पैरामीटर इनेबल्ड है। तो फिर SD-WAN के अंदर आपके पास IPsec बाई डिफॉल्ट इनेबल्ड हो गई, सिक्योर हो गया। इसी तरीके से जितने ये प्लेन थे, जितनी डिवाइसेस होंगी, जितनी ब्रांच होंगी, सबके मैनेजमेंट प्लेन अलग होते। इन केस ऑफ द SD-WAN ये सारा कौन कंट्रोल करेगा? हमारा जो कंट्रोलर्स हैं वो कंट्रोल करेंगे। 3 कंट्रोलर्स हमारे पास आ जाएंगे, एक V मैनेजर आ जाएगा, एक V स्मार्ट आ जाएगा, एक V बॉन्ड आ जाएगा। उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो SD-WAN के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स होंगे, VM यानी V मैनेजर यानी वर्चुअल मैनेजर, दूसरा V बॉन्ड, तीसरा V स्मार्ट, VS। वर्चुअल, सब वर्चुअल हैं जितने भी ये कंट्रोलर्स हैं,
ये अभी तक हार्डवेयर आए नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, कंट्रोलर्स हैं। SD-WAN कंट्रोलर्स। ऑल आर वर्चुअल, सारे वर्चुअल है। इनकी जो कनेक्टिविटी है वो मल्टीपल ट्रांसपोर्ट से होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट MPLS भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट इंटरनेट भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट जो है सेल्यूलर भी हो सकता है। तो इन सब की कनेक्टिविटी एटलीस्ट कम से कम 2 ट्रांसपोर्ट तो होने चाहिए रिडंडेंसी के लिए। और जो हमारी डिवाइसेस होंगी वो VH वेप्टेला की और CE सिस्को की, ये भी मल्टीपल ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है SD-WAN जो एज डिवाइसेस हैं, यानी इन्होंने जगह ले ली, जो आपके पास CE होता था, कस्टमर एज होता था, उसकी जगह ले ली। तो इतना जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट है, ये कंट्रोलर्स हैं, ये SD-WAN डिवाइसेस हैं। तो ये बीच में जो बनेगा सारा का सारा, यहाँ बनेगा SD-WAN फैब्रिक। क्या बनेगा? SD-WAN फैब्रिक बनेगा। यानी जो वर्चुअल कनेक्शन एस्टैब्लिश होंगे वो यहाँ पर होंगे। हमारा जो V मैनेजर है ये हमारे मैनेजमेंट प्लेन को कंट्रोल करेगा, यानी जितनी भी VH-CH डिवाइस हैं सबका मैनेजमेंट, यानी मेन जो ब्रेन है, ये ब्रेन सारा ये है, सारा ब्रेन वी मैनेज के पास ही है, सब कुछ को हैंडल यही करेगा। तो जितनी तरह की कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसिंग है हर एक डिवाइस की वो ये करता है। वी बॉन्ड जो है ये ऑथेंटिकेटर प्लेन बोलें या इसको ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन बोलें, ORCHESTRATOR प्लेन, और ये हमारा कंट्रोल प्लेन को हैंडल करेगा। जबकि पीछे आपने ये देखा कि इन केस ऑफ दी ट्रेडिशनल राउटिंग हर एक राउटर अपनी राउटिंग टेबल डायरेक्टली एक दूसरे को दे रहा है, लेकिन इन केस ऑफ दी SD-WAN ऐसा नहीं होगा। SD-WAN में ये जो राउट्स होंगे, SD-WAN के अंदर ये जो सर्विस VPN के राउट्स होंगे, इसको परमिशन नहीं है कि ये इसको डायरेक्टली दे दे। नो, नोट, कोई परमिशन नहीं है। ये जितने भी राउट्स होंगे ये किसको भेजे जाएंगे? vSmart को, और vSmart फिर इनको आगे भेजेगा। अभी डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर SD-WAN कंपोनेंट के 3 पार्ट हैं, एक WAN एज डिवाइसेस, एक ट्रांसपोर्ट, और तीसरा SD-WAN कंट्रोलर्स। अब ये जितने भी कंट्रोलर्स हैं, ये कंट्रोलर्स आप चाहें तो इसको AWS पे, एज्योर के थ्रू, या इफ़ यू आर टेकिंग दी गूगल तो उसका गूगल का क्लाउड है, या फिर आप अगर सिस्को का सॉल्यूशंस ले रहे हैं तो फिर तो सिस्को के ही क्लाउड पे आप इसको रखेंगे। सिस्को आप प्रोवाइड करेगा आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास प्रोवाइड कर देगा। या आप इन तीनों कंट्रोलर्स को अपने प्रीमिसेस में रखना चाहते हैं तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द आमिर सर। आप आमिर सर से हेल्प ले सकते हैं कि इसको कैसे रखें। आपके पास बड़ा सर्वर हो तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, इसको ESXi प्लेटफॉर्म पे कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, आपकी हेल्प की जा सकती है अगर आप अपना पर्सनल बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है इसका करने का।
अच्छा, अब ये जो डिवाइसेस हैं, जो VH डिवाइसेस हैं और CH डिवाइसेस हैं, क्या ये भी वर्चुअल हैं या ये हार्डवेयर हैं? तो ये जो VH डिवाइस है, ये जो है आपके पास, इसकी वर्चुअल यानी ये विमवेयर पर भी हो सकती है और ये हार्डवेयर भी है। ये दोनों ही आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, लैब में हम वर्चुअल पर ही कराएंगे क्योंकि हार्डवेयर तो परचेज करना मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन के ऊपर हम ये करेंगे सारा का सारा। जो आपके पास CSR है, CSR के अंदर जो है जो सिस्को की डिवाइसेस हैं CH, इसमें जो CSR है, CSR जो है आपके पास वो वर्चुअल है, और इसके अंदर जो ISR राउटर हैं वो आपके पास हार्डवेयर है, और जो ASR राउटर्स होते हैं वो भी आपके पास हार्डवेयर हैं। तो हमने CSR पे काम करना है वर्चुअल इन्वायरमेंट में यहाँ पे, और इसके ऊपर हमने जो काम करना है VH के ऊपर, ये भी वर्चुअल मशीन पे काम करना है। कितने कंट्रोलर्स लगाए जा सकते हैं सिस्को के वाइट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, कितने वी बॉन्ड लगाए जा सकते हैं और कितने वी स्मार्ट लगाए जा सकते हैं? तो वी मैनेजर की अगर हम बात करें तो वी मैनेजर जो है कितने लग सकते हैं? वी मैनेजर मैक्सिमम जो लग सकते हैं वो 6 लगाए जा सकते हैं। मैक्सिमम 6 वी मैनेजर हम लगा सकते हैं। और एक जो वी मैनेजर होता है, ये 2000 VH और CH दोनों मिला के 2000 डिवाइस को हैंडल कर सकता है। यानी मैनेजमेंट प्लेन हैंडल कर सकता है कितनी डिवाइस का? 2000 डिवाइसेस का। इसका मतलब 6 इंटू 2000, इसका मतलब हो गया कि वो आपने देखना पड़ेगा कितना बड़ा आपका एनवायरनमेंट है, कितना डिवाइसेस साइट्स आप खड़ी कर रहे हैं। तो 12,000 डिवाइसेस के लिए ये आपके पास वैन एज डिवाइसेस के लिए 6 चाहिए। एक जो है 2000 हैंडल कर लेता है, तो 2000 साइट का मतलब बहुत कुछ बड़ा हो गया, छोटी साइट नहीं हो गई। इसी तरीके से जो वी स्मार्ट है, जो वी स्मार्ट है, वी स्मार्ट कितने लगाए जा सकते हैं? वी स्मार्ट जो मैक्सिमम लगाए जा सकते हैं वो लगाए जा सकते हैं 20, यानी 20 वी स्मार्ट लगाए जा सकते हैं। 20 वी स्मार्ट लगाए जा सकते हैं। और एक जो वी स्मार्ट है, ये 5000 और 400, 5400, उसको हम बोलते हैं CC कंट्रोल कनेक्शन। यानी जनरली वो कंट्रोल प्लेन की बात की जाएगी, यानी इतनी डिवाइस का कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल CC का मतलब होता है कंट्रोल कनेक्शन। कमांड जो चलेगी, कमांड चलेगी शो कंट्रोल कनेक्शन के नाम से। तो इतनी डिवाइसेस का ये कंट्रोल प्लेन हैंडल कर सकता है। इसका मतलब 20 गुणा अगर 5400 किया जाए तो 3 जीरो तो ये आ गए, और ये 2 चौक 8 आ गया, और 2 पंजे 10 आ गया, यानी 1,08,000 आपके पास कनेक्शंस को वी स्मार्ट हैंडल कर सकता है। बची बात वी बॉन्ड की, जो ऑथेंटिकेटर है। तो एक डिवाइस कितने डिवाइस को ऑथेंटिकेट एट ए टाइम कर सकती है? तो मैक्सिमम जो लगा सकते हैं वो 6 वी बॉन्ड लग सकते हैं, और एक वी बॉन्ड एट ए टाइम 1500 कंट्रोल कनेक्शन बना सकता है। यानी ये जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम में ये जो वी बॉन्ड है, एक ही वी बॉन्ड हो, और हमारे पास 1500, हमारे पास 1 2 और ये 1500 अगर कनेक्शन आते हैं, तो 1500 डिवाइसेस के साथ में एक साथ ही ऑथेंटिकेशन कर देता है। ऑथेंटिकेशन के बाद ये जाके स्लीपिंग मोड में सो जाता है, इसका कोई काम नहीं होता। जब आके कोई नॉक करता है इसके ऊपर, तो फिर उसको ऑथेंटिकेट करने बैठ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ये 1500 कंट्रोल कनेक्शन बना सकता है या ऑथेंटिकेट कर सकता है। इसका मतलब 6 गुणा 1500 का मतलब हो गया 15 छिक्का 90। ये आपके पास ये 9000 आपके पास डिवाइसेस के को ऑथेंटिकेट कर सकता है। बात समझ में आ गई भी? आगे चला जाए, ज़्यादा तो नहीं हुआ, या कल किया जाए, डिपेंड्स अपॉन यू।
चंदन से पूछा जा रहा है। हाँ स्टार्ट करिए सर, हैं? करिए सर, 10 बजे तक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम सब इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन क्या क्या करता है। वी मैनेजर की बात करेंगे, वी मैनेजर की बात करेंगे। तो जो वी मैनेजर है is not a physical appliance। ये फिजिकल अप्लायंस नहीं है, यानी हार्डवेयर नहीं है। वी मैनेजर इज अ वर्चुअल इंस्टेंस है। अब इसका फायदा क्या होगा वी मैनेजर का? वी मैनेजर प्रोवाइड सेंट्रलाइज, क्या क्या सेंट्रलाइज कर सकता है? कॉन्फ़िगरेशन को सेंट्रलाइज कर सकता है। जितनी भी ब्रांच की कॉन्फ़िगरेशन है एक ही जगह से बैठ के हम कर सकते हैं। एक ही जगह से बैठकर सबके ऊपर हम पॉलिसीज लगा सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, रियल ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं, रियल ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं, iOS को अपग्रेड कर सकते हैं। तो एक ही जगह से बैठ के सारे काम किए जा सकते हैं। अगर आपके पास ये ना होता तो हर एक डिवाइस का आप लॉगिन लेते, बार बार उसको टेलनेट करते, एसएसएच करते, वॉटेवर। 100 डिवाइस होती, एक साथ काम करना होता, एक के बाद एक 100 डिवाइस के कंसोल आप लेकर बैठे होते रिमोटली या लोकली। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल एक ही का ही आप एक्सेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो डिवाइस, मैं अगर इसको ऑन कर दूं यहाँ पे, थोड़ी देर में इसका मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेस। अभी 10 मिनट लगेंगे इसको ऑन होने में, 10-15 मिनट लग जाते सर हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था? वी मैनेजर इज नॉट फिजिकल। इट्स नॉट ए फिजिकल अप्लायंस, ये फिजिकल हार्डवेयर नहीं है, वर्चुअल इंस्टेंस है। हार्डवेयर कोई भी यूज करो, हमने आईबीएम का हार्डवेयर यूज किया हुआ है, ठीक। तो उसके ऊपर वर्चुअल इंस्टेंस आप डालेंगे। कैसे डालेंगे वो बताई जा सकेगी आपको, अगर आप अपना बनाना चाहेंगे, अदरवाइज तो लैब एक्सेस करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी, पॉलिसीज होंगी, ट्रबल शूटिंग, रियल ट्रैफिक मॉनिटरिंग और आईओएस अपग्रेडेशन एक ही जगह से कर सकते हैं। नोट हो गया चंदन? जी सर। ना, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये वी मैनेजर है और यहाँ पर वी एज है और यहाँ पर सी एज है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है जो हम करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होगी। इस कॉन्फ़िगरेशन को करने के बाद हम क्या करेंगे कि इनके बीच में ऑटोमेटिकली सिक्योर टनल्स बनती हैं, और उस टनल्स को भी हमें बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। सारा काम यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटेड है, A to Z सब कुछ। यहाँ पे टनल्स बनती हैं जो कि कहलाती हैं DTLS टनल्स कहलाती हैं। ये ऑटोमेटिकली बनेंगी, हमें इस टनल को भी बनाने की ज़रूरत आपके पास नहीं है, ऑटोमेटिकली टनल बन लेगी। ये डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये ऑटोमेटिकली बनेगी, ये एक कमांड भी हमने इसके लिए ऑन नहीं करना है। तो ये सिक्योर टनल्स होंगी सारी की सारी। तो जब हम ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे की जाएगी और ये कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर पुश कर दिया जाएगा, इसकी तरफ भी, चाहे वो CH हो उसकी तरफ भी पुश कर दिया जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन जो पुश की जाएगी इसमें एक प्रोटोकॉल काम करेगा इस टनल के अंदर, जिसका नाम नेट कॉन्फ होता है। हमने सिर्फ लिखना है कि नेट कॉन्फ इनेबल्ड कर दो, टिक करना है नेट कॉन्फ के ऊपर।
तो जो नेट कॉन्फ है बेसिकली, नेट जो कॉन्फ है ये कहलाता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये कहलाता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका भी कोई पैरामीटर हमने सेट नहीं करना है, हमने सिर्फ ये लिखना है अलाउ सर्विस नेट कॉन्फ, या ग्राफिकली में जाके केवल हमने उस पर टिक करना है, क्लिक करना है। ये जो प्रोटोकॉल है बेसिकली IETF ने बनाया था, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स पे। कभी पढ़ना हो तो इसकी RFC होती है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट 6241, इसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ द netconf is that कि it will carry the configuration from the vManager to vEdge और cEdge under the DTLS secure tunnel के अंदर ले जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि इफ यू वांट टू क्रिएट एनी पॉलिसी, अगर आप कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो पॉलिसी भी यहाँ बनेगी, बट पॉलिसी डायरेक्टली पुश नहीं होती है। पॉलिसी के लिए वी स्मार्ट, ये वी स्मार्ट से भी DTLS टनल बनाकर रखता है, और ये जो वी स्मार्ट है ये इनसे DTLS टनल बना के रखता है। यानी हर एक कंट्रोलर की DTLS टनल vEdge और cEdge के साथ में बनी होगी। तो इफ वी वांट टू मेक एनी पॉलिसी, तो पॉलिसी जो आएगी वो पॉलिसी vManager पे बनेगी, और vManager विल पुश टू दी, यहाँ पे पुश करेगा, और फिर ये इसको रीपुश करेगा इसकी तरफ, ये इसको रीपुश करेगा इसकी तरफ। ठीक है जी, ये इसको पुश करेगा। तो पॉलिसी थ्रू दी वी स्मार्ट जाएगी, लेकिन बाकी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये ऑन होकर आ गया है तो मैं इसका आपको एक्सेस लेके दिखाता हूँ कैसी शक्ल नज़र आती है इसकी। तो कल से हम लैब की तरफ चलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेसिक, फिर कल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ही हो पाएगी, फिर अगले दिन सर्टिफिकेट डालेंगे। इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन एडमिन है। यहाँ पे शो इंटरफेस, इसका जो ETH0 है, ये इसका IP एड्रेस मिला है जो हमें DHCP से मिला है, इसको हम यहाँ डाल देंगे 192.168.1.108, और ये HTTPS है, यहाँ पे HTTPS है, और एंटर। यहाँ पे अभी आया नहीं है, थोड़ा सा वक्त और लेगा, अभी चल रहा है प्रोसेस, वेट करें, आ जाएगा तो दिखा देंगे। तो vManager का जो फंक्शन है वो ये है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि जहां पर 15, 20, 30, 40, 100, 200 ब्रांचेस होती, वहां पर अलग अलग लोकेशंस पर होती, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे नेटवर्क एडमिन काम कर रहे होते। अब वहां पर केवल एक कैंडिडेट यहाँ बैठकर इसको हैंडल कर सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं जहाँ पे 30 या 40 लोग काम करते, वहां पर एक या दो बंदा हैंडल कर सकता है उस काम को जो 30-40 लोग काम कर रहे थे। तो जॉब बढ़ रही है कि कम हो रही है? हाँ जी, जॉब बढ़ रही है कम हो रही है? घट रहा है ना। जॉब जो है घटता जाएगा जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जॉब उन लोगों के लिए रहेगा अवेलेबल जो अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। हर 6 महीने में नया कोर्स करना है, चाहे हमारे से करो या कहीं और से करो, खुद से करो। आज के डेट में लॉट ऑफ मटेरियल इज देयर ऑन द इंटरनेट, वक्त लगाना पड़ता है, ठीक है ना। एक टाइम था कि डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं थे, अब डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, बट इट विल टेक टाइम। तो जॉब उनके लिए मौजूद है बहुत सारी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अब ऐसा नहीं है किसी ने BA कर लिया और 10th क्लास कर दिया तो स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। अब स्कूल का गांव का प्रिंसिपल बनने के लिए भी PhD ज़रूरी है जी। कॉलेज में लेक्चरशिप नहीं मिलती जब तक कि PhD ना हो। पहले B.Tech हम जब पढ़ते थे 91 में, तो उस टाइम पे B.Tech करके बंदा जो है B.Tech वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया करता था। अब नहीं होता ऐसा। तो ये काम था किसका? इसका मैनेजर का। आ गया उन्हों के कि नहीं आ गया? अभी भी नहीं आया, थोड़ा टाइम ले रहा होगा। आ गया। हम्म, आ रहा है, भी पहुँच रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और टाइम दे दें इसको।
दूसरा जो डिवाइस है, जो वी बॉन्ड था, उसका काम क्या था कि जब कभी भी कोई भी न्यू वी एज आएगी या सी एज आएगी, तो इसको केवल हमने वी बॉन्ड का आईपी दिया होगा बस, और हमने इसको दिया होगा कि हमारा ORG नेम क्या है। हमारा ORG नेम था NCP कैप्स में और NETWR के, ये हमने दे रखा होगा इसको। हमने इस डिवाइस के ऊपर वी बॉन्ड का आईपी दिया होगा, ये दिया होगा। हमने ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, उसके थ्रू इसकी और इसकी कनेक्टिविटी हमने करके दी होगी, रीचेबिलिटी प्रोवाइड की होगी। जब ये डिवाइस ऑन होकर आएगी, इसको वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपके पास पता होगा, और इसके पास जो है सर्टिफिकेट होंगे जो हम लोकली भी जनरेट कर सकते हैं, या सर्टिफिकेट हम GoDaddy से, सिमेंटेक्स से, वेरीसाइन से भी ले सकते हैं। तो कैसे सर्टिफिकेट को हम जनरेट करेंगे? इसमें आपके पास एक टर्म होगा रूट आईडी, एक होगा CSR, एक होगा आपके पास ID सर्ट। ये तीन चीजें कैसे जनरेट की जाएंगी, क्या फंक्शन होगा, और डिस्कशन करेंगे। तो ये भी चीज इसके पास होगी। तो ये जब डिवाइस, नई डिवाइस इसके पास आएगी, तो इसको एक चीज और चाहिए होगी, जो हमने बताया कि हमने डॉट विप्टेला से, सिस्को से, PNP प्लग से, PNP साइट से, वहां पे विप्टेला से कुछ हमने सीरियल कीज ली होंगी या टोकन नंबर लिए होंगे, जो हमने इसमें फीड किए होंगे। तो जब ये आपके पास इस डिवाइस के पास पहुंचेगी, तो ये डिवाइस जो वी बॉन्ड है, ये उसको ऑथेंटिकेट करेगी। इसके पास पहले से ही एक लिस्ट होगी VH और CH डिवाइस की, उनके जो चेसी नंबर हैं, यानी जो सीरियल नंबर हैं या वर्चुअल चेसी नंबर हैं या सीरियल नंबर हैं या टोकन नंबर है, डिस्कशन होगा। वो इसकी लिस्ट इसके पास होगी। इसके पास लिस्ट कहाँ से आएगी? हमारा जो वी मैनेजर है, हम इस वी मैनेजर के ऊपर सिस्को का जो पोर्टल होगा, उस पोर्टल से इसको ऑटो सिंक कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि जो फाइल हैं वो हम अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लें और फिर इसको यहाँ पे अपलोड कर दें। तो जब हम डाउनलोड करेंगे और अपलोड करेंगे, तो जैसे ही इसको अपलोड करें लैपटॉप के थ्रू या डायरेक्टली सिंक करें, ये क्या करता है कि इसके जो दो साथी और हैं, वी स्मार्ट, ये आपस में बॉन्ड बना के रखते हैं। इन सब की एक दूसरे से टनल्स बनी होती हैं। ये भी टनल्स जो होती हैं वो DTLS टनल ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड हो जाती हैं। जैसे ही हम वो फाइल डॉट विप्टेला फाइल डायरेक्टली सिंक करें या डाउनलोड करके अपलोड करें, ये अपने इन साथियों को, कंट्रोलर्स को बता देता है। दैट्स वाई जब ये डिवाइस जो है, नई डिवाइस इसके पास आती है, अपना सर्टिफिकेट बस दिखाती है, अपना रूट दिखाती है। ये ऐसे मान के चल रहे हैं जैसे कि आपके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी आया हो। आपकी शादी हो चुकी है, आपको ईश्वर ने एक बेबी दिया है, तो ये लेट से घर पर ही बच्चा पैदा हुआ है, अस्पताल में नहीं हुआ है। अब इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या करोगे? बताओ भाई, कौन बताएगा? बताओ भाई, इस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, क्या करोगे? लोकल किसी से हाँ जी, लोकली किसी से बात करके ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा ना। किससे बात करोगे? मतलब किसी से भी चलते फिरते बंदे से बात कर लोगे, सर्टिफिकेट बनना बन नहीं जाए। नहीं हाँ, नहीं, वो जो होता है MLC या वार्ड पार्षद या ऐसा कुछ।
तो क्या बोलते हैं उसको, क्या होती है वो, अथॉरिटी होती है कि नहीं होती है? ऑथोरिटी होती है। तो जो अथॉरिटी होती है यहाँ पे, उस अथॉरिटी का नाम क्या है? सीए अथॉरिटी, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है, इसको सपने आ रहे होते हैं कि आपको सर्टिफिकेट बना कर दे देगी कि भाई साहब बच्चा पैदा हुआ, सर्टिफिकेट ले जाओ, या कि आपने ये कुछ रिक्वेस्ट भेजनी होती है? फॉर्म एक जनरेट करना होता आपने एक फॉर्म भरना होता है। आपने क्या करना होता है? एक फॉर्म भरना होता है। यानी आप एक सीएसआर, कस्टमर साइनिंग रिपोर्ट, किसको भेजते हो? अथॉरिटी को। तो आप क्या करते हो, एक पेपर के ऊपर मेरा नाम क्या है, मदर का नाम यानी फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, बच्चा कब पैदा हुआ है, और नीचे एक लाइन लिखी होती है कि हम ये डिक्लेयर करते हैं कि बच्चा हमारा ही है। हाँ जी, यही लिखते हैं। किसी दूसरे का भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? है। तो जैसे आप कॉलेज डिक्लेरेशन का भी करना। फॉर्म भरते हैं, तब भी उसमें डिक्लेरेशन देते हैं कि नहीं देते हैं? बैंक में डिक्लेरेशन देते हैं कि नहीं देते हैं? तो आपने ब्लैंक पेपर पे या एक फॉर्म पे एक लिखा, जी मेरा नाम ये, बीवी का नाम ये, बच्चे का नाम ये, इस डेट में पैदा हुआ है और ये हमारा ही बच्चा है, हम इस बात की पुष्टि करते हैं। तो ये क्या करता है आपको, कि उसके ऊपर क्या करके देता है, उसी चीज के ऊपर आपको एक स्टैंप लगा के वापस कर देता है। यही करता है जी? हाँ यही करता है ना। तो यहाँ पर भी यही हाँ। फंडामेंटल होगा कि जो रूट आईडी और सीएसआर आईडी सर्ट होगा, कि एक रूट आई, एक अथॉरिटी होगी, एक साइनिंग रिक्वेस्ट आएगी, एक आईडी सर्ट जनरेट किया जाएगा कि भाई इसको लेकर आओगे, आई कार्ड है तो वेलकम किया जाएगा। तो जब ये यहाँ पर आएगा, जब दिखाएंगे किस तरीके से सर्टिफिकेट पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट डालने में भी तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है और बड़ा ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जब ये डिवाइस इसके पास ये सर्टिफिकेट लेकर आएगी, इसके पास वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस यही इसी का पड़ा होगा और किसी का नहीं होगा। हमारा जो वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस है वो फिक्स्ड आईपी एड्रेस है, जो कि ये वाला आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस हमारा रजिस्टर्ड है सिस्को के साथ में। क्या हो गया, चलता क्यों नहीं पेन? हाँ, ये वाला आईपी एड्रेस हमारा रजिस्टर्ड है। तो ये डिवाइस इसके पास आएगी और किसी का आईपी एड्रेस है ही नहीं इसके पास। तो जब ये डिवाइस इसके पास आएगी यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, आपके पास अपनी लिस्ट में देखेगा और इसकी लिस्ट में यहाँ पर ये पता लग जाएगा भी जो कीज वगैरह मिली हैं ये वैलिडेट हो गई हैं और सर्टिफिकेट भी वैलिडेट हैं। तो ये क्या करेगा कि ये इसके बारे में, इसका जो आईपी एड्रेस होगा इसके बारे में वी स्मार्ट को ही बता देगा और इसको ही बता देगा। और एट दी सेम टाइम ये दूसरा काम ये करेगा, इसका जो ये आईपी होगा और इसका जो आईपी होगा, वी स्मार्ट इसको ही बता देगा कि तुम्हारा वी मैनेजर कौन है और तुम्हारा वी स्मार्ट कौन है। यानी सबसे पहले तो हम इसके पास जाएंगे पहले नंबर पे, फिर ये क्या करेगा, उसी के पहले नंबर के ए पार्ट में और पहले नंबर के बी पार्ट में इसको इंट्रोड्यूस करा देगा। फिर ये जो वी मैनेजर है ये कॉन्फ़िगर करेगा इसको दूसरे नंबर के ऊपर। जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और पुश हो जाएगी, तो फिर ये जो डिवाइस है अपनी इंफॉर्मेशंस, जो भी इसके पीछे ओवरले नेटवर्क होगा, उस इंफॉर्मेशन को किसको भेजेगा, वी स्मार्ट को भेजेगा। तो सबसे पहले हमारी जो मुलाकात होती है यहाँ पे वो किससे होती है, वो सर्टिफिकेट और सीरियल वगैरह डालने के बाद ये पहले यहाँ पर आता है। फिर ये इसको कॉन्फ़िगर करता है। यानी ये इसके पास जो आया है वो किस पर्पस के लिए आया है, ऑथेंटिकेशन के लिए। यहाँ पर ये इसके ऑथेंटिकेशन के लिए आया हुआ है। ऑथेंटिकेशन जब हो जाता है तो ये दूसरे नंबर पर ये डिवाइस इसको क्या करती है, कॉन्फ़िग करती है। तीसरे नंबर पर जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है तो ये अपनी इन नेटवर्क आईडीज को इस वी स्मार्ट को भेजता है। तो अब जो वी स्मार्ट है उसका काम क्या है, वी स्मार्ट का काम ये है कि ऑथेंटिकेशन वी बॉन्ड के थ्रू हो गया, कॉन्फ़िगरेशन वी मैनेजर ने कर दी, ये वी स्मार्ट है। और ये मेरा सी एच है, ये मेरा वी एज है, या दोनों भी सी एज हो सकते हैं। यहाँ पर जो नेटवर्क है फॉर एग्जांपल 10.10.1.0, और यहाँ जो नेटवर्क है 10.10.2.0, ये जो है कौन से वीपीएन के अंदर है, ये सर्विस वीपीएन के अंदर है। ये सर्विस वीपीएन के अंदर है। सर्विस वीपीएन
1 से लेके 511 हो सकता है और 513 से लेके 65,535 हो सकता है। रीजन इज दैट चूंकि वीपीएन जो वीपीएन जीरो है ये ट्रांसपोर्ट के लिए रिजर्व्ड है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए रिजर्व्ड है, और वीपीएन जो 512 है 512 है ये मैनेजमेंट प्लेन के लिए रिजर्व्ड है। तो इनके बीच में भी जो बनेगी वो क्या बनेगी, डीटीएलएस टनल बनेगी, यानी यहां पर भी डीटीएलएस टनल होगी, इधर भी डीटीएलएस टनल होगी, और इस डीटीएलएस टनल के अंदर में एक प्रोटोकॉल चल रहा होगा जिसका नाम होगा ओएमपी। ये कहलाता है ओवरले MANAGEMENT मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो जो भी प्रोटोकॉल आपका यहाँ पर रन हो रहा होगा, लेट्स से यहाँ पे OSPF रन हो रहा है या कोई और प्रोटोकॉल रन हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये रूट हमें रिडिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करने, ये यहाँ पर ऑटो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ऑटो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसके अंदर, ओएमपी के अंदर। ये रूट एग्जैक्टली यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब आपने बीजीपी के अंदर एक टर्म पढ़ा होगा आईबीजीपी, किसी ने आईबीजीपी में पढ़ा है आरआर क्या होता है जी भाई, व्हाट इज आरआर इन आईबीजीपी? Route reflector. The function of the route reflector is that whatever the information वो router receive करता है without any modification उसको यू टर्न करके अगले वाले को भेज देता है। तो जो रूट थे आपके पास, जो सर्विस वीपीएन के रूट थे, जो सर्विस वीपीएन के राउट थे, वो इसके पास जब रिसीव हो रहे हैं तो ये कौन से रूट रिसीव हो रहे हैं बन के, ओएमपी राउट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा होता और इतने पोर्शन में बीजीपी चल रहा होता, समझने के लिए। तो इस राउटर पे जो रिसीव होते रूट किसके होते, ओएसपीएफ के रिसीव होते या बीजीपी के रिसीव होते? बीजीपी के। अगर यहाँ ओएसपी, यहाँ पे ईआईजीआरपी चल रहा होता तो यहाँ पे ईआईजीआरपी के रूट रिसीव होते। ऐसे ही यहाँ पे प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है ओएमपी अंडर द डीटीएलएस टनल, तो ये ओएमपी के राउट हो गए, तो ऑटोमेटिकली रिडिस्ट्रीब्यूट तो हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरे राउटर पे जाते हैं तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे इसको यहाँ लाने के लिए मैनुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, यहाँ पे मैनुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो ये तीनों ही जो डिवाइसेस हैं उनके फंक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया। ये आ गया होगा, आई थिंक ये आ गया, ये इसका ग्राफिकल मोड है जो कि वी मैनेजर है, और सारा काम इसी से ही होना है और कहीं से नहीं होना। बेसिक कनेक्टिविटी हमें चाहिए होती है, फिर हम इसी पे ग्राफिकल पे आ जाए। यहाँ पर इस डायग्राम में मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस को क्या लेकर आना होता है, ऑन बोर्ड लाना होता है। तो हम देखते हैं ये सारी डिवाइसेस 6 की 6 डिवाइसेस ऑन बोर्ड हैं। इनके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए टेम्पलेट्स बनाने पड़ते हैं, हर काम का ये टेम्पलेट बनता है। तो यहाँ पे जैसे हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर के टेम्पलेट बनाए गए होंगे किसी बैच में, तो हेडक्वार्टर के इतने सारे टेम्पलेट्स है, यानी जो हेडक्वार्टर है इसके इतने सारे टेम्पलेट बने। इसी तरीके से इधर VRRP है तो VRRP के टेम्पलेट बनाए गए होंगे, तो ये VRRP के टेम्पलेट बनाए गए हैं इतने सारे। फिर इनको डिवाइस टेम्पलेट में कॉल कर लिया जाता है, तो डिवाइस टेम्पलेट के अंदर उसको हम कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के बाद फिर डिवाइस के ऊपर पुश कर देते हैं। तो ट्रैफिक जो जा रहा होता है उसको हम सिमुलेट भी कर सकते हैं कि ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है कहाँ से नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद नेटवर्क पे चले जाते हैं और ये सारी चीज़ें आप करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे ये VRRP राउटर पे आ गए, यहाँ से ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है कहाँ से नहीं जा रहा है। रियल टाइम पे जाने के बाद यहाँ पर ट्रबल शूट पे जाने के बाद ये सिमुलेट फ्लो पे चले जाते हैं, और यहाँ से VPN2 हमने बना रखा है और कहाँ जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इधर इंडिया के इस पर जाना चाहते हैं, ये 10.10.11 इंडिया का IP है, और यहाँ से हम ट्रैफिक को सिमुलेट करेंगे तो ये दिखा देगा कि हम कौन से रास्ते से ट्रैफिक को लेके जा रहे हैं। विज इंटरनेट के थ्रू हमारा, यानी नीचे वाले लिंक के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है, ऊपर वाला लिंक हमने पीछे डाउन कर रखा है उसके अंदर। तो इस तरीके से ट्रैफिक जा रहा होगा। इसी तरीके से अगर हमने चाइना पे जाना है यहाँ से, यानी यहाँ से कोई भी ट्रैफिक जो यहाँ से जाएगा तो इधर कैसे जा रहा होगा, यहाँ पे चाइना का हम
आईपी डाल देंगे, तो ये सारा का सारा किस तरीके से जा रहा है, ये सारी पढ़ाई की जाएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। कल हम जो शुरू करेंगे वो आपका बेसिक वाला डायग्राम शुरू करेंगे, और उसके अंदर कमांड लाइन से शुरुआत की जाएगी, CLI से, इस वाले डायग्राम के ऊपर कमांड लाइन से जो कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी वो कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी कॉन्फ़िगरेशन जितनी रीचेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके, कम से कम ये इंटरफेस इतनी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे ताकि ये आपस में रीचेबल हो जाएं। जब ये रीचेबल हो जाएंगे तो हम इन डिवाइसेस के ऊपर सबके ऊपर सर्टिफिकेट डालेंगे। उसके बाद इनकी जो कीज वगैरह होंगी वो डालेंगे। उसके बाद ये सारी डिवाइसेस क्या आ जाएंगी, ऑन बोर्ड इस पे ग्राफिकली आ जाएंगी, जैसे कि ये ऑन बोर्ड सारी की सारी डिवाइसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। तो जब ये ऑन बोर्ड डिवाइसेस आपके पास आ जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसको जो है ग्राफिकली सारा कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फिलहाल वो आमिर सर से डिस्कशन कर लें। कल उन्हीं लोगों की क्लास रहेगी जिनकी पेमेंट हमारे पास आ चुकी होगी। सर एक डाउट था, जी फरमाएं। जो पहले जो VC है आपका, पहले ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा, ऑथेंटिकेशन से आपका जाएगा VM। पहले ऑथेंटिकेशन जब हो जाएगा तो ये वाला IP एड्रेस इसको और इसको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये भी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि इस डिवाइस का जो कीज नंबर था वो मैंने ऑथेंटिकेट कर दिया है। जो कॉन्फ़िगरेशन डाल रहा है VM, जो डाल रहा है VM ने कॉन्फ़िगरेशन टू VE, तो कौन सा प्रोटोकॉल में डाल रहा है? आपका नेट कॉन्फ़िग में चल रहा है ना? वो खुद VM टू, ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है, हमने सिर्फ इतना लिखना है अलाउ सर्विस नेट कॉन्फ, और कोई हाँ, पता वो नेट कॉन्फ़िग प्रोटोकॉल में DTLS में चल रहा है ना? ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ करेंगे, DTLS टनल यहाँ बनी होगी जिसको हम देख सकते हैं शो कंट्रोल कनेक्शन कमांड के थ्रू कि इसने इस वाले IP से इस वाले IP पे एक टनल ये बना रखी होगी और दूसरी टनल इसने इसके साथ बना रखी होगी, और ये कॉन्फ़िगरेशन इस डिवाइस को कर रहा होगा। जब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जो पुश की होगी उसको हम यहाँ पे शो रन में देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पुश होके आ जी गई है जी। कि नहीं आएगी। जब कॉन्फ़िगरेशन पुश हो जाएगी तो उसके बाद ये जितने भी राउट्स होंगे ये राउट्स डायरेक्टली नहीं जाएंगे, ये राउट सारे के सारे vSmart पे जाएंगे जिसको हम शो OMP पीयर में देख सकते हैं। फिर ये इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा बाकी डिवाइसेस के ऊपर। तो कल का काम तो फिलहाल ये है कि पहले हम इसको आपस में कनेक्ट करें। जब ये कनेक्ट हो जाए तो सर्टिफिकेट डालें, यानी कनेक्टिविटी एंड सर्टिफिकेशन, ये काम कल करने की कोशिश करेंगे। आपके पास 3 दिन होंगे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इन तीनों दिन में आपकी लैब इतनी रेडी हो जानी चाहिए जितनी कल हमने करवाई होगी। उसके बाद फिर आगे प्रोसीजर चलेगा। ठीक है जी। कल सर सेम टाइम ना? है जी, कल सर सेम टाइम ना सर? हाँ सेम टाइम 8 बजे ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद आज़ाद आपने ज्वाइन करना है? यस सर। क्या सर किया आपने, नहीं कर रखा है, NP किया हुआ है? CCN ने किया है सर, आपके पास ही किया है सर, बहुत पहले। तो फिर एन कर लोगे आप इसको, लग रहा है आपको? हेलो आपको लग रहा है कर लोगे आप? सर, मैं CCNP करना चाहता हूँ पहले सर। तो CCNP के लिए आमिर सर से कांटेक्ट कर लो। कल 8 बजे तो इनकी SDN की क्लास होनी है फिलहाल। ठीक है सर, मैं उनसे बात कर लूँगा। कैसे इसका वीडियो का एक्सेस मिलेगा, चंदन आमिर सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। आज एक्सेस मिल जाएगी क्या सर? हाँ अपलोड कर दिया जाएगा इसको, आपकी क्रेडेंशियल पेमेंट तो आपकी आ गई है तो आपको डाल दिया जाएगा। और सर ये आपका लैब के लिए? लैब के लिए भी आमिर सर ही बताएं क्या करना है। लैब के लिए तो पहले हम करके दिखाएंगे फिर आपको हम्म, एक्सेस मिलेगा। ठीक ठीक है है, जी, ठीक है। ओके जी, बाय। थैंक यू, गुड नाइट।